The only unbeaten team in the tournament, Sindh, take on a regenerated Balochistan in the day's opening game. Shahnawaz Dani was at his aggressive best as Sindh scuttled Northern for a modest score in their last game. Sharjeel Khan set the pace for his team in the chase. And skipper Sarfraz ensured Sindh cruised to an easy win. Balochistan have revived their fortunes with the first win in their third game, with Yasir Shah and Ahmad Butt rocking ATF Southern Punjab. Outside edge, brilliant catch. Bit of swing, bit of shape. And Abdul Wahid Bangalzai ensured there were no hiccups and his team moved up from the bottom of the table. Hello and good afternoon और वेलकम करते हैं आप सबको पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मैच 9 तैयार है जीएफएस सिंध और मुकाबला है उनका बलूचिस्तान से। पॉइंट्स टेबल पर एक नजर डालते चलते हैं। अब तक की सबसे बेहतरीन टीम 2 मैचेस में 2 विक्ट्री, सिंध सबसे ऊपर है और उनका मुकाबला जिनसे है वो ऊपर आना चाहेंगे 5वीं पोजीशन पर बलूचिस्तान। वेलकम करते हैं आपको यहाँ पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। खासी गर्मी है यहाँ पर और 2 दिन का ब्रेक मिला है। Is he looking pretty fresh after that break? I'm just going to throw a question to you. If you were to put it in a nutshell, talking about the first 8 games, the 4 days, how do you see them? I don't think the team's found a rhythm of the T20 game. I think they were upset a little bit by the pace of the track being a little bit different. I don't think it's difficult, but it's certainly different. It's not what they normally get at this venue. So I don't think they've found the rhythm. I think they've got to lower the expectations. I'd like to see a real reset here. I think that they've got to look at, not look too far ahead. I mean, they've got to look when they're batting at about the 10 over mark and set some sort of target there, and obviously have a mark at the 20 overs. But they've got to make sure it's a bit like old-fashioned cricket to a certain extent, I think, and not that old-fashioned. But they've got to make sure they've got guys that are there and can really just cut loose at the death. I think that's going to be the name of the game, to try and play a better brand of T20 cricket on this surface. Because let's face it, this is the sort of surface they're going to get in the World T20 in the UAE. Yeah, quick one, if you notice the games that have taken place in the last 8 games, couple of them, in fact 3 of them, sides batting first, haven't been able to play their 20 overs. Yeah, that's right. I mean, and that's poor. That really is poor. I mean, I've looked at the stats, and the sides batting first overall, there's not too much difference between the batting first and the runs they've scored batting first versus the runs they've scored batting second. So the runs are there, but you've got to make sure you've got guys who can actually just have a bit of a go and some pyrotechnics at the end that can really boost. All you need is, if you've set a nice little trend and you haven't, and you found the rhythm of the game and you haven't got too far ahead of yourself, and if you've marked that 10 over mark and you've got it, and you've got somewhere around about 15, from there on you just need a couple of overs that are worth 15, maybe a few more, and suddenly, rather than the 160 mark, the 150, the 140 mark, which is what they've been getting batting first, you're up around the 180, and that's definitely a winning score. Okay, so it's the center strip of the square. Sana Mirad there with the pitch report. And we are here for match 9. After a gap of 2 days, the groundsmen have given us a brand new pitch. And in this pitch, if you see, there are more cracks than usual. In this part also for the spinners and for the lefty as well. The average score when we started the tournament from last year was 173. But now it has come to 150, which is quite low for Pindi Stadium. We have seen a lot of runs here. But we have seen the variable bounce. And all the matches that we have played in the afternoon, the teams chasing have won the game. So win the toss and bowl first. Well, she's saying win the toss, bowl first, 6 out of 8, chasing. We still don't have big scores here. 150 is round about what the sides are scoring. I think Sana's about right, but just going back to what I said, just a couple of big overs at the right time, suddenly that 160 changes quite dramatically. Man, if I was batting first on this surface, I would say, okay, let's target 160 at 20. Let's make sure that we're going at 7 over after 10, so you're only about the 70 over mark, and then target the 160 after 20, but with a bit of luck, maybe you get the 170, 180. Okay. Time for us to join the toss, the 2 captains and Bahzil Khan. Quite a muggy afternoon here in Rawalpindi, so the bowlers might be hoping for a bit of swing. And it is the time for the toss. So we've got Sarfraz, Imam ul Haq, Professor Anis, match referee. I believe Sarfraz has the coin. Tails. Tail is the ball.
Tails is the call, and it's gone for a spin. सरफराज has won the toss. सरफराज का क्या करेंगे और क्यों? बैटिंग कर रहे हैं हम लोग। पहले मैच में स्पेशली बॉलिंग जीती है, आज आपने बैटिंग का फैसला किया। बस कोशिश करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारी बॉलिंग थोड़ी स्ट्रॉन्ग साइड पे जा रही है, तो कोशिश करेंगे रन्स ऑन द बोर्ड करें और फिर उसको डिफेंड करने की कोशिश करें, क्योंकि अभी अर्ली डेज है, तो अभी ये डिसाइड करना मुश्किल है कि पहले बैटिंग करें या बैटिंग करें। पिच इवन चल रही है दोनों बारी में, तो इसी वजह से आज हमने ये फैसला किया कि पहले बैटिंग करें। इमाम, पिछले मैच आप जीते और उसमें आपने डिफेंड किया था, तो आपके लिए तो अच्छा फैसला। जी, हमारे लिए अच्छा है कि हम जो है लास्ट स्ट्रेटजी से ही जाएंगे। कोशिश करेंगे कि जो है लाइन लेंथ पे कोशिश करें, अच्छे बॉल करें और 150 में के अंदर रिस्ट्रिक्ट करें, और ताकि हमारे बैट्समैन के लिए ईजी हो। सरफराज, आपकी टीम तो बहुत फॉर्म में है, कोई ख़ास वजह है इस दफ़ा या आपके सारे सीनियर प्लेयर्स काफ़ी फॉर्म में हैं? देखिए, ऑब्वियसली सीनियर प्लेयर तो परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एज अ टीम हम लोग अच्छा खेल रहे हैं, और सबसे अच्छी चीज़ जो है मैंने पहले भी मेंशन किया कि फील्डिंग हमारी बहुत अच्छा कर रही है, और शॉर्ट फॉर्मेट में अगर आपकी फील्डिंग साइड अच्छा करे तो आप किसी भी टीम को कम से कम रन पर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। इमाम, ट्रांसफर्स हुए हैं, आपकी टीम को भी 2-3 प्लेयर्स मिले हैं, कोई प्लेयर चेंज किया आपने? जी बिल्कुल, हमारे पास अब्दुल्ला शफीक खेल रहे हैं और सुहेल अख्तर आए हैं मिडिल ऑर्डर में, तो अच्छा है कि जो है हमारी टीम की बैटिंग जो एक लग रही थी मिडिल ऑर्डर की, तो वो जो है हमारा जो है इस एरिया से कवर हो जाएगा। बट मेरे ख्याल से बात वही होती है कि जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो ज़्यादातर होता है कि ग्राउंड में ज़्यादा अच्छा पता चलता है, तो मेरे ख्याल से जो है हमारा अच्छा कवर हो गया, तो इंशाल्लाह देख रहे हैं कि अच्छा टोटल स्कोर करेंगे। सरफराज, आपकी टीम में कोई चेंजेस? नहीं जी, सेम टीम है। So the news out here in the center is that GFS Sindh have won the toss and are batting. Oh, very unlike Sarfaraz, wants to bat first, but that's what's been working for them. No changes for GFS Sindh, but Balochistan using that loan window, getting in Abdullah Shafiq and Sohail Akhtar in. I spent a bit of time this morning looking at Shafiq, some video of Shafiq, and I mean his career has been wasted for the last 10 months. He looks like a serious player to me, and he hasn't played at a higher level for 10 months, and that's just ridiculous. Someone's got to answer for that, because he's a fine player, 21 years of age. I mean, gee, who knows? I mean, he could have been really kicking into international cricket by now and playing nicely. The other thing, Sindh haven't batted first before in this tournament so far, so that's going to be something a little bit new for them. But I'm looking forward to seeing these two lone boys and see how they get on. Well, if you look at it, Yasir Shah is not available because he's fractured his finger, but they haven't replaced. 5.5 and over he was going at, so that's a huge blow. Exactly, and they got Mohammad Mohsin into the squad as a replacement, leg spinner, but he's not playing there. It's hard to tell what's working for the teams in terms of bowling. Is spin having more say or quicks? The spinner's having more say, there's no doubt about it, but I mean, Yasir Shah was someone that the captain can bank on. I mean, if you're a captain, you've got Yasir Shah and he's bowling as well as he is, you know, you can toss him the ball, the track is conducive to the ball turning, you know he's going to do a job for you, and as I say, going at 5.5 and over is just priceless in this sort of form. Yeah. Well, Izzy, thank you so much for your words. Pleasure. Now, here we are, ready for game number 9, और यह है मुकाबला GFS सिंध और बलोचिस्तान का। याद रहे कि GFS सिंध इस वक्त लीड कर रहा है पॉइंट्स टेबल को, 5वीं पोजीशन पे है बलोचिस्तान। देखते हैं कि सिंध टॉस जीत के कितना स्कोर बना पाता है। आज सरफराज और उनके मेन हैं इन फॉर्म। ऑल द एक्शन ऑन द अदर साइड ऑफ द ब्रेक।
रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से हम बराह रास्त आ रहे हैं, जहां पर नेशनल T20 कप 2021 के सिलसिले का मैच है। बलोचिस्तान और GFS सिंध की टीमें आमने सामने। शर्जील खान ये अव्वलीन बैट्समैन हैं, 114 मैचेस खेले हुए हैं, बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है। T20 के लिए स्ट्राइक रेट बिल्कुल मौजूद, तकरीबन 140 का। बड़ी इनिंग्स खेलने पर भी इन्हें मलका हासिल है। उनके साथ शान मसूद जो इस टूर्नामेंट में उनके नए ओपनिंग पार्टनर हैं, एक सेंचुरी बना चुके हैं और इन्होंने बहुत ज़्यादा बेहतरी दिखाई है इस फॉर्मेट में हालिया बरसों में शान मसूद ने। और इनके मद्दे मुकाबिल होंगे नई गेंद के साथ खुरम शहजाद, जो गेंद को स्विंग कराने की अहलियत रखते हैं। और मेरे साथ माइक का सामना कर रही हैं इस वक्त मरीना इकबाल, पाकिस्तान की फॉर्मर क्रिकेटर। उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। शुक्रिया तारिक। और एक अच्छा मैच आज देखने को मिलेगा। GFS सिंध बामुकाबला बलोचिस्तान। सिंध ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया है। थोड़ा सा हटके ये फैसला रहा, अगर देखा जाए। सरफराज ज़्यादा चेस करने के शौकीन नजर आते हैं। जहां बलोचिस्तान की टीम में कोई तब्दीलियां की गई हैं, आकिब जावेद भी मौजूद होंगे खुरम शहजाद का साथ देने के लिए मैदान पर। मुमकिन तौर पर वही नई गेंद भी करते हुए नजर आएंगे। इमामुल हक बदस्तूर कप्तानी कर रहे हैं। और ये अंपायर नया चेहरा नासिर हुसैन सीनियर इस सेंट पर हैं। उनके साथ कैसर वहीद स्क्वायर लेग पोजीशन पर मौजूद। इम्तियाज इकबाल टेलीविजन अंपायर हैं। फील्ड बिल्कुल तैयार है और अंपायर की घड़ी के मुताबिक अब वक्त हो चला है। तो पहली गेंद आने को है, राइट आर्म ओवर द विकेट, फार एंड से खुरम शहजाद एक स्लिप के साथ। अच्छा खेला बैकफुट पर, लेकिन उतनी ही उम्दा फील्डिंग भी पहले दोनों मैचेस में खासे शशोपंज में लगे थे। यहाँ पर डाइव करते हुए गिरे बंगलजई, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, उन्होंने हाथ के इशारे से मुत्तला कर दिया है बाहर। अच्छा बाउंस देखने को मिला, पेस भी अच्छी लगी खुरम की। गेंद अच्छा बल्ले पे आया है और खूबसूरत बैकफुट पंच था, लेकिन लगता है कि बिल्कुल घुटने के नीचे बॉल आ गया, जिस वजह से थोड़ा सा इशू आया है बंगलजई को। ऑन साइड में 3 फील्डर हैं लेफ्ट हैंडर शान के लिए। एक और अच्छा स्ट्रोक ऑफ द बैक फुट, लेकिन 2 फील्डर वहां पर तैनात किए गए हैं, क्योंकि शान मसूद इस इलाके में खासे मजबूत हैं, बहुत रन्स बनाते हैं स्क्वायर ऑफ द विकेट दोनों जानिब। जी, लेकिन कई दफ़ा यहाँ आउट होते भी इन्हें देखा है। जो चौथी 5वीं स्टंप पे जो गेंद पड़ के थोड़ा सा स्विंग होता है बाहर, उस पर कभी ना कभी एज लगा बैठते हैं और उसी की वजह से स्लिप भी मौजूद है। आज मतला अबर आलूद है, तो बादल गहरे होते जा रहे हैं। यूं ही ये पहली गेंद हुई है, धूप बिल्कुल गायब हो गई इस आउटफील्ड से। इस बार अटेम्प्ट किया, गेंद खासी बाहर थी, वाइड जानकर इससे जाने दिया। अलबत्ता अंपायर ने लगता ये दरगुजर किया इस बार। काफी टाइट कॉल थी, लेकिन नासिर हुसैन सीनियर ने ये, और बिल्कुल मेरा ख्याल है सही डिसीजन भी था। थोड़ा लेट स्विंग हुआ, अच्छा डिसीजन अंपायर की जानिब से। विकेट अच्छी लग रही है तारिक, 2 दिन की तातील थी, उसके बाद आज अच्छा सॉलिड अभी तक जो देखने में नजर आया। विकेट काफी हार्ड लग रहा है, अच्छा बाउंस आ रहा है। वही गेंद ऑफ स्टंप की खासी बाहर थी और खासी रफ्तार से भी आई, 143 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से। एक बार उसी एरिया में दोबारा हुरम ने बॉल कराई, अपनी किस्मत आजमा रहे हैं वाइड बॉल के हवाले से अगर बात की जाए। लेकिन एक अच्छा डिप्लॉय है, थोड़ा सा अंदर ला सकते हैं, खिलाने जाएं शान मसूद को ताकि स्लिप का फायदा उठा सकें।
शान मसूद जो है जिस पिच में बाउंस होगा, ट्रू बाउंस होगा, ये आपको ज़्यादा बेहतर खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन जो टिपिकल पिचेस होती हैं सब कॉन्टिनेंट की, जहां पर गेंद रुक कर आती है, ऑन द अप नहीं खेल सकते, वहां ये शशोपंज में रहते हैं। पहले दोनों मैचेस में हमने यही देखा था, ये इनको टाइम नहीं कर पा रहे थे। जहाँ बॉल अच्छा आ रहा होता है वहाँ पे बहुत अच्छी बैटिंग होती है। टाइमर है ये बॉल के, बहुत कम देखा है कि बनाने जाएं शॉट। और अभी जो प्लान फिलहाल नजर आ रहा है, पॉइंट और कवर काफी क्लोज है, बैकफुट ही खिलाना चाह रहे हैं। और अब गालिबन स्लिप जो है वो निकल के एक और पॉइंट के एरिया में फील्डर जो है वो तैनात हो रहा है। ये हारिस इकलौती स्लिप में थे, अब वो पॉइंट पर चले गए हैं। 5 फील्डर्स हैं, एक तांता बंधा हुआ है लेफ्ट हैंडर्स के लिए ऑफ साइड में फील्डर्स का। यही वजह है कि जगह मिल नहीं सकी इस ओवर में। पहला ओवर ये मेडन रहा किसी नुकसान के बगैर सिंध के लिए। बलोचिस्तान की टीम में अब्दुल्ला शफीक को आज मौका दिया गया है। सेंट्रल पंजाब की टीम का हिस्सा थे, लेकिन वहां बड़े बड़े नाम हैं इसलिए जगह नहीं बन सकी। सोहेल अख्तर भी सेंट्रल पंजाब से आए, मोहम्मद मोहसिन भी, लेकिन अभी उनको इंतजार करना होगा खेलने के लिए लेग स्पिनर को। पहला रन बड़ी तेजी के साथ हासिल किया गया, अच्छी दौड़ लगाई शान और शर्जील ने। अंदर आया था ये बॉल, उसको बड़े मोहतात तरीके से खेला और शान ने स्ट्रेट अवे कॉल कर दी थी। रिप्लाई किया उसका शर्जील ने। आकिफ जावेद उनकी बेस्ट है, 16 रन दे के 3 विकेटें। अच्छा एक्शन है, स्लिंगी एक्शन है इनका। ये देखें हल्का सा अच्छी सी पोजीशन ऑफ द विकेट, ये थोड़ी सी मूवमेंट नजर आई हमें। आकिफ जावेद ज्यादातर वो फार एंड से बॉलिंग करते हैं, आज पवेलियन एंड से विद द विंड इनको लाया गया है। अगरचे आज ज्यादा हवा चल नहीं रही रफ्तार के साथ, लेकिन पिच अच्छी लग रही है बैटिंग करने के लिए। और पहले दिनों में जो 8 मैचेस हुए थे, औसत स्कोर 150 था। पिछले बरस के मुकाबले में 23 रन का फर्क आया। पिछले बरस 173 औसत स्कोर था पहले खेलने वाली टीमों का यहाँ। और हवा में लेकिन गैप में 4 रन मिल जाएंगे। शान मसूद ने बिल्कुल भी कुव्वत सर्फ नहीं की, अच्छा टाइम किया और प्लेसमेंट लाजवाब। खुशकिस्मत रहे इस मौके पे शान मसूद, इनर फील्ड क्लियर करने में कामयाब रहे। अंदर आ रहा था बॉल, लेकिन अच्छा बल्ले का फेस दिखाया और बेस इतनी थी कि 4 रन के लिए आसानी बाउंड्री के पार कर दिया। शान मसूद पाकिस्तान सुपर लीग में ये मुल्तान सुल्तान्स की कप्तानी भी कर चुके हैं और खासी रास आई थी इनको क़यादत T20 क्रिकेट में। इनकी अपनी कारकर्दगी बेहतर हो गई। और ड्राइव करने के लिए गए, इस बार कमजोर शॉट था, गेंद और बल्ले के दरमियान फर्क ना होने के बराबर रहा। खूबसूरत डिलीवरी आकिफ की है, परफेक्ट लेंथ थी, परफेक्ट लाइन और हल्की सी मूवमेंट। ऑन द ड्राइव करना चाह रहे थे शान, लेकिन पीट हुए। और ये खासियत इनकी, खास फीट मूवमेंट नजर नहीं आई थी। अच्छी बॉलिंग फिलहाल आकिफ की जानिब से। फैसल इकबाल हेड कोच हैं, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर। फिर अच्छा निगोशिएट किया, बाउंस पर राइड करते हुए इस गेंद को निकालने में कामयाब हुए शान मसूद। जस्ट फॉर मैन, ये आप
QR कोड स्कैन कीजिए और इनामात जीतिए। ये बड़ा सुनहरी मौका है इनामात जीतने का। लेकिन सिंध और बलूचिस्तान को मैच जीतने की फिक्र है आज। गेंद बड़ी तेजी के साथ गई और फील्डर दबाव में थे। खुरम शहजाद ने 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए। अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा, क्योंकि ये फाइनल लेग थर्ड मैन पर बहुत कम वक्त मिलता है फील्डर को रिएक्ट करने का। बिल्कुल, एक बार फिर अंदर बॉल आया, उसको अच्छा निगोशिएट किया शर्जील ने, और खुरम ने डेफिनेटली बाउंड्री तो बचाई, लेकिन थोड़ी सी फंबल की वजह से 2 रन बनाने में कामयाब हुई शर्जील। बनीना, बेहतर नहीं होगा कि यहाँ पर ड्राइव कराने की कोशिश की जाए? अभी गेंद नई है, मूवमेंट भी मौजूद है, ज्यादा शॉट्स बैकफुट पर खेले जा रहे हैं। एक बार फिर बैकफुट पर गए और ये गेंद कट हुई थी ऑफ द सीम। लेग बाई पर इत्तेफा करना पड़ा। तो 9 रन्स अपने पहले ओवर में आकिब जावेद ने दिए। यही सिंध का स्कोर है। GF सिंध, जिसमें सऊद शकील को हम खेलते हुए देख रहे हैं। पहले मैच में इनको मौका नहीं मिला था, पिछले मुकाबले में रन आउट हो गए थे। दानिश अजीज ये छठे बॉलर हैं। अनवर अली और दानिश अजीज ये दोनों मिलकर न सिर्फ मैच को फिनिश करते हैं, बल्कि ये 4 ओवर्स का कोटा भी मुकम्मल करते हैं दोनों। सेम फील्ड रखी गई है जो कि शान मसूद के लिए मौजूद थी। और आप बात कर रहे थे कि बेहतर ये हो सकता है कि अगर इनको आगे खिलाएं। शर्जील की क्या स्ट्रेंथ है ये सब जानते हैं। कोई भी लेंथ बॉल या जो ऊपर पिच हुई होती है, बॉल आगे पिच हुई होती है, उसको वो बिल्कुल नहीं बख्शते। तो अच्छा है ये प्लॉट विद इन बॉडी, बैक ऑफ लेंथ थोड़ा सा खींच के बॉल कराया जाए, उन्हें मजबूर किया जाए कि बैकफुट पे खेलें, क्योंकि वो कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है उनकी। शर्जील के लिए स्लिप में कोई फील्डर नहीं। ऑफ साइड में 5 फील्डर दायरे में हैं, ऑन साइड में 2। और ये इतनी वाइड थी कि अंपायर को इशारा भी करना पड़ा। इस बार नासिर हुसैन सीनियर ये केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं लाहौर में, टाउनशिप के इलाके में, जहां हमारे स्टैटिस्टिशियन मजहर अरशद एक ज़माने में रहा करते थे टाउनशिप में। एंगल एक्सप्लॉइट करना चाह रहे थे खुरम, पिछले ओवर में भी थोड़ा सा फ्लर्ट कर रहे थे ऑफ स्टंप के बाहर, लेकिन इस बार बहुत बाहर था। रिस्ट के साथ ज़्यादा मूवमेंट मिल गई इनको। जोरदार इस बार लाजवाब टाइमिंग। सहर आफरी चौका शर्जील खान का, उनका पहला। यही इनकी स्ट्रेंथ है, जो भी पिच बॉल आगे होता है उसको नहीं बख्शते। विथ भी मिल गई थी और अपने बाजुओं का खूब इस्तेमाल किया। किसी भी फील्डर के पास कोई मौका नहीं था। सीधा गैप में 4 रन के लिए। ये आग से खेलने वाली बात है। अगर ऑफ स्टंप के बाहर आप मुसलसल बॉलिंग करेंगे और वो भी विड्थ के साथ शर्जील खान को, अच्छा शॉट और उतनी उम्दा फील्डिंग। फील्डिंग का म्यार खासा बेहतर नजर आया है आज के दिन में। ये अब्दुल्ला शफीक हैं। खतरे से खेल रहे हैं खुरम शहजाद विथ देके, लेकिन उम्दा फील्डिंग, यकीनी चौका बचाया इस बार। अब्दुल्ला शफीक जो है वो उन्होंने ज्वाइन किया बलूचिस्तान को। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था पीसीबी की जानिब से, जो ट्रांसफर और लोन ऑप्शन इन्होंने दी है। और
इनको मौका मिलेगा इस बार अपनी बैटिंग दिखाने का। यहाँ नौजवान बैट्समैन हैं, 21 बरस इनकी उम्र है। पिछले साल इन्होंने सबसे ज्यादा रन स्कोर किए थे सेंट्रल पंजाब के लिए। और कट किया, दौड़ने की जरूरत महसूस होगी, 1 रन हासिल करेंगे यहाँ शान मसूद। 5 ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि गए हैं मुख्तलिफ टीमों में। अब्दुल्ला शफीक, सुहेल अख्तर, मोहम्मद मोहसिन, ये 3 खिलाड़ी बलोचिस्तान में गए हैं क्योंकि पीसीबी ने जो स्पेशल विंडो खोली थी 2 दिन पहले। समीन गुल सेंट्रल पंजाब की टीम में शामिल हुए हैं केपी से, और उसामा मीर जो लेग स्पिनर हैं वो सदर्न पंजाब की टीम में एक्शन में नजर आएंगे। ये भी अब्दुल्ला शफीक की तरह सियालकोट से आते हैं उसामा मीर। एक रन का और इजाफा। अच्छी बैटिंग कर रहे हैं दोनों खिलाड़ी। अब उनको अंदाजा हो चुका है पिच के बाउंस का, पेस का। आज मूवमेंट नहीं है, बिल्कुल ट्रू पिच लगती है, और कोई वजह नहीं कि यहाँ पर टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर आज ना हो सके। अभी तक कोई भी ऐसी गेंद हमें देखने को नहीं मिली जिसने थोड़ा सा भी मुश्किल बनाई हो बैटर्स के लिए। अच्छा बल्ले पे आ रहा है, शान मसूद भी सेटल्ड हैं, शर्जील भी अच्छी कंपोज्ड फॉर्म में लग रहे हैं। तो थोड़ा सा सेटल होके इनको चाहिए होगा कि अपने गेयर्स जो हैं वो शिफ्ट करें और फायदा उठाएंगे टॉस जीत के बैटिंग करने का। अंपायर बिल्कुल टच से मस नहीं हुए। 8 रन का ओवर था खुरम शहजाद का। 3 के बाद 17 पर कोई खिलाड़ी आउट नहीं। आज एक बॉलर को कम किया है और जुनैद खान नहीं खेल रहे बलूचिस्तान की टीम में। अम्माद भट्ट, उमैद आसिफ ये आमतौर पर मिडल ओवर्स में बॉलिंग करते हैं, और जो सोलो स्पिनर हैं वो काशिफ भट्टी हैं बलूचिस्तान के। यासिर शाह अनफिट हो गए, 10 दिन उनको आराम का मशवरा दिया गया। और हुक किया शर्जील खान ने, फील्डर है लेकिन गेंद उनसे बाला बाला गई। आज के दिन का ये पहला छक्का। गेंद बुरी नहीं थी आकिफ की, लेकिन शर्जील को पूरा टाइम मिल गया था हुक करने का। और एज तो नहीं कहेंगे लेकिन पूरा मिडल नहीं कर पाए, बट इतना काफी था कि बाउंड्री से पार छक्के के लिए ये बॉल गई। कोई मौका मौजूद नहीं था। यहाँ बॉलर खुद को बतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि बाउंसर ज्यादा ऊपर होना चाहिए था। ये बाउंसर ऊपर था, इस बार फिर हवा में खेले लेकिन 2 रन मिल जाएंगे। ठीक है। अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा, जारहाना बॉलिंग कर रहे हैं आकिफ। बॉलर T20 में बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन इमामुल हक की और उनके बॉलर की ख्वाहिश है कि वो अटैक करें, विकेट हासिल करने के लिए जाए। बिल्कुल अच्छी बॉलिंग है, विद इन बॉडी रख रहे हैं, विथ नहीं दे रहे जो कि शर्जील एक्सप्लॉइट कर सकें। और ये बाउंसर भी अच्छा था, लेकिन मौके का फायदा जरूर उठाया शर्जील ने। टाइम मिल गया था उन्हें पुल करने का। यही होता है जब आप 2 बाउंसर्स करें तो फिर बैट्समैन जो है अगले कदम पर आकर स्ट्रोक खेलने के मामले में उतना पुरएतमाद लगता नहीं। और आज बाउंस है, इस पिच में पेस ज्यादा लग रही है पहले दिनों से अगर मुवाजना किया जाए। बिल्कुल अच्छा आ रहा है। हमने शुरू के मैचेस में देखा थोड़ा सा ग्रिप होता था, स्पेशली जब पहली इनिंग्स में जो बैटर्स थे वो ऑन दी अप ड्राइव नहीं मार पा रहे थे, लेकिन आज बिल्कुल बरक्स है उसके। शानदार, इस बार लाजवाब आसानी के साथ इस बाउंड्री लाइन को क्लियर किया और गेंद को 10वें जीने तक पहुंचा दिया। दूसरा छक्का शर्जील खान का इसी ओवर में। इस एरिया में अगर शर्जील खान को बॉल मिलेगी तो वो
आंखें बंद करके भी छक्का मार सकते हैं। नाइस पिकअप शॉट, फ्लिक किया, अच्छा रिस्ट पोजीशन था इनका और बासानी 6 रन के लिए एक बड़ा छक्का इनका। इमामुल हक के लिए इस वक्त परेशानी का सबब हैं जिस तरह बैटिंग कर रहे हैं शर्जील खान। 209 उनका स्ट्राइक रेट हो चुका है, 11 गेंदों में 23 रन, नॉट आउट। विकेट लिए बगैर चारा नहीं होगा। बड़ी लंबी बैटिंग लाइनअप है सिंध की और ये इन फॉर्म खिलाड़ी हैं। अनवर अली बड़ी अच्छी हिटिंग फॉर्म में है। सरफराज अहमद ने पिछला मैच अपनी टीम को जितवाया था और खेला हवा में, फील्डर नीचे नहीं आ पाएंगे। ये बहुत देर तक रही ऊपर और शर्जील ने 2 रन बनाए। यहाँ पर तीसरा भी मुमकिन हो सकता था, लेकिन 2 ही रन पे इत्तेफाक किया। इस बॉल से पहले शॉर्ट मिड विकेट प्लेस किया गया था, एलिवेशन मिल गई थी लेकिन डिस्टेंस नहीं मिल सका शर्जील को। और फिलहाल फुल एग्रेसिव मोड में शर्जील और फायदा उठा रहे हैं अच्छी बैटिंग कंडीशन का। खासा महंगा ओवर है, 16 रन इसमें बन चुके हैं। क्या बेहतर इख्तिताम कर सकेंगे आकिफ? बैट पर लगी, अब्दुल्ला शफीक ने गेंद को पिक किया। ठीक है। तो आकिफ का ओवर मुकम्मल होने पर सिंध ने बनाए हैं 33। So 16 off that last over. Suddenly 4 overs gone, 33 for none. That's all they need. It's just a couple of overs like this throughout the innings is going to get them a nice total. It was a little bit slow to start with. It's not anymore. So they're going just a shade under 8.5. The Iron Man now, Ahmed Asif. 37 years of age, just keeps running in, keeps trying. He's a 100%er. He's nice and tall. That's a big advantage. He doesn't bowl with any great pace, but they're thereabouts all the time. Sent back. That would have been interesting. Direct hit might have been worth sending upstairs. Whenever there's a direct hit, it's more closer than we anticipate. We'll have to look at this one. First there was a yes, and then he was sent back. Goodness. It's not the greatest running. Took a while to turn around, Chojio. Till now they have been batting in good partnership, because after the first maiden over, they have still 33 or 4. That's that extra height, every now and then a bit of extra bounce. Balochistan is definitely become stronger with the new inclusions. A very good initiative by PCB. And these are the fans enjoying cricket with Tapal tea. And looking pretty satisfied about things as well, it's got to be said. 2 allowed outside the circle at this stage in the power play. We've got third man and also a deep backward square leg on the leg side. Nicely fielded, good scrambling shy at the stumps as well. Wasn't on target, but certainly saved 3 runs. Very good fielding by Haris Sohail in covers. And Shan Masood has been a bit unlucky also. He has played to the fielders, but every now and then when he has really middled it, a good fielding effort has definitely stopped that. So, but overall, they have recovered well with a quick 25 by Sharjeel. Yeah, he's down on his run rate, Shan Masood, but he shouldn't be too concerned about it, because in these sort of conditions with the track a little bit, I'm not going to say difficult, but a little bit different, someone's got to bat a long way, and Sharjeel is the dasher.
Already seen that with a couple of big sixes that he's hit. So Masood is one of those guys who's a good striker of the ball. Don't get me wrong, he can certainly play his role. This time a bit more bounce there again by Umaid Asif. He can extract some extra bounce, what other bowlers cannot, because of his height and good action as well. Not much pace in the surface. That's a bit of a gimme. He missed out on that. That was a full toss. That should have been put away. They're the ones you've got to take toll of. 128 k's per hour. He also looked to play it across the line, trying to muscle it to mid-on. There you go, straight rather. So I don't know what they're thinking regarding mid-innings. I would suggest they should be thinking about the 170 mark. That's only sevens or 7.5, maybe 75, 10 overs. Then they've got a chance of getting to the 170 mark if someone plays well at the top. That's cracked away. That's nicely fielded. Certainly saved 3 more runs. So in this over, Haris Sohail has definitely saved 3 runs after 5 overs, 35 for naught. Right, just look at the broadcasters. Just a quick look at the broadcasters, at the television broadcasters at the top. Now I just want to highlight the streaming on the YouTube channel and also Facebook page. They're HD quality and uninterrupted coverage as well, and it really is wonderful to watch. You can jump on there and really enjoy some high quality cricket, which we're looking forward to over the next 5 days in this remaining leg in Rawalpindi. As I said, HD quality and uninterrupted. Of course, don't forget the TV channels as well. Ahmad Butt now into the attack. After this leg, we're off to Lahore for another stretch of games. So we've certainly got so much cricket to go. Each team plays 10 matches. Going at 7 runs of the over at this stage, and this is fine. Sindh haven't batted first so far in this tournament. And they have won 2 out of 2 games chasing. So it's an interesting decision that they want to bat first. A comment was made that their stronger point is their bowling. So Sarfraz was wanting their batting side to put on a good total. It's a good enough total for their bowling side to have a good go at. So far, so good at the moment. Osaka question of the day. When Pakistan won the 2019 ICC T20 World Cup, who was named player of the tournament? Answer this question on www.fb.com/Osaka Batteries and get a chance to win exciting prizes. Who was named player of the tournament when Pakistan won in 2009? And because they have played with each other so often, Imamul Haq making sure that he keeps the shackles on Shan Masood. There's a deep mid-wicket for Shan Masood. Sent back by Chajil. He's getting a bit edgy. Shan Masood, you can tell by that. He shouldn't be too concerned because the run rate's okay. I just hope they've done their planning in the dugout and before in the change room. Set a couple of key targets, 10 overs. Yes, for his individual run rate, it's down to 46, but as the partnership, it's 36 of 33. That's whipped away beautifully. That is a wonderful shot. Very nicely played
suddenly he's going to be feeling a lot better. Absolutely classy shot there. Excellent timing there. He exactly knew where the square leg fielder was. He just had to make a shot, place it, pass him. It was a deep mid-wicket, but there was no deep square. Excellent timing. Pressure on the bowler now, 5 in the first 3 deliveries. In his first over, suddenly there's transfer. That's a little bit too straight again, and that's whipped away a little bit straighter. That is a wonderful stroke. Beautifully played by Shan Masood. And now Shan Masood is dominating. He's playing with the field. Because of the last shot, the deep mid-wicket fielder came to deep square, and this time he plays it to mid-wicket. Excellent batting. So this ball is still on the harder side, still quite new, therefore it's still coming onto the bat. This is the time when you need to take toll of the bowling if it happens to be loose. There's no movement, nothing through the air. Trying for a third, I think. We're happy with the one. Important runs for Sindh here, because this will help settle nerves for Shan Masood, who had played a lot of dot deliveries. And now the partnership, 45 of 36. And in my book now, they're ahead of the game. 1 ball away from 6 overs. I think they're just snuck ahead of the game at this stage from what their targets, I would suggest, should have been. Important you don't get too far ahead of yourself on these sort of surfaces. Nice little round off for a single to finish. So 11 from that over, 46 for none. That's the power play done, and Sindh took good control in the last couple of overs. 27 runs off those last 2 overs. Made again. Pick that up. There is protection, but it's not going to matter. 6 runs off the first ball makes a massive difference to the over. That's the 50 partnership in style, giving no respect whatsoever to the Iron Man, Sharjeel Khan. Just look at that shot. Quick hands, great follow through, big 6. Right, what's the advice from the captain now? He's got to make sure he gets his length a little better. Sharjeel is looking to tee off whenever he can. He's slightly short on this surface. He's just picking up beautifully. He never uses his feet too much. Standing shot. First ball of the over. And both Sharjeel and Shan Masood are standing with an open stance and opening that leg side for themselves. Don't forget to create an account of the merchandise store at shop.pcb.com.pk and get a chance to win a Pakistan's cricket team T20 World Cup shirt signed by the Pakistan T20 World Cup squad 2021.
That offer ends on October the 15th, and 5 lucky winners will be announced after that. Now that has maybe not been hit far enough. It hasn't, and it's out. Got underneath that. Hit it very high indeed. It's not the biggest boundaries here at this ground, but he couldn't clear the fence. Slower delivery it was. 114 kilometers per hour, excellently deceived. Excellently disguised also by the Iron Man. Sohail Akhtar, the fielder, at mid-wicket, making no mistake, and that's the celebration. I guess there's the last laugh to a certain extent, with Shahzil Khan going for 34, 52 for 1. Yeah, that's perfect. First wicket down, 52 on the board, 52 for 1 it is. Khurram Mansoor now out in the middle for GFS Sindh, 35 years of age, played a lot of games, 120. Short delivery. And this is the 100th wicket of the Iron Man, Umayyad Asif. Perfect. Slow one. Just look at that. The wider fingers. That's why it was well disguised also. Sharjeel getting to know very late that it was a slow one. A good catch in the deep by Sohail Akhtar, who has also been inducted into the Balochistan side. The best T20 bowlers say you've got to make sure you've got 5 or 6 different varieties of slow ball. There's the knucker ball, there's that genuine slow ball we just saw now, which is the easy one, I guess, to bowl. There's obviously the cutters, there's the back of the hand slow ball. Down to third man. Off the mark straight away, Khurram Mansoor. He has been in really good form. Most runs in T20 cricket and at domestic level. That is skin color and on the back of the field, not in the field. So obviously with the power play done, it just gives the captain a little bit more of an opportunity for protection. Can post a few more boundary riders. Easiest way to slow down the run rate. Masood's played a couple of beautiful shots. Never lasted a while. He's tucked that away. Slight misfield. Indecision as well. And this is what T20 cricket is all about. The first ball went for a 6. Then they get a wicket and the run rate slows down. Otherwise, if the wicket was not fallen, you would see that this could have been such a big over. Yeah, and it's pretty clever bowling too. That slow ball you've been pumped out of the ground for 6 by a long way, and then suddenly you bowl that slow ball, so it's pretty gutsy stuff. And he was rewarded, forcing him back. Just arrived, so just easing that down for 1. So in the end, he picks up a wicket, but does concede 10, 56 for 1. Slightly. That's middle. Thank you. Shakil, they come in next. Sarfraz, the captain after that. Sarfraz is one of those guys I reckon would be pretty annoying to play against, but he certainly is a busy cricketer out there. He's
Very good sweeper of the ball. He played very well in the last game. Steer Sindh home. Aziz as well. He's a fine player. Ahmad Butt again. It's interesting that Sindh has not picked up any extra player for the trading window that PCB had provided. They bat till number 7. Most of the teams, the bigger teams in this tournament, Central Punjab and Southern Punjab, they bat even more deeper. So they did not add anyone else because, of course, they've got 2 wins in two matches. And Imamul Haq got a major issue because he doesn't have Yasir Shah. That is a major problem. He was going at 5.5 runs per over so far in this tournament. He's got a hairline fracture. They say he's out for at least 10 days. You've got a hairline fracture. I'm afraid you're going to be a little bit more than that, I think, particularly in the thumb area. Got Mohammad Mohsin as his replacement. And some more people enjoying cricket, drinking Tapal tea. We've got about 4 more balls before you and I are going to enjoy one of those, Sana. Absolutely, eagerly waiting. Nice little shape, actually. A little movement away from the right-hander. And that's why importance of wickets in this part of this leg of the T20 has become so much talked about. These kinds of variations, the change of paces, are not able. Batters have not been able to judge it whenever they come to the crease in the first 10-15 deliveries. But once you're set, then it's become a bit more easy to read this wicket. Strong drive on the up. Nice work. These pitches are not going to be far different from the pitches in the UAE. Of course, UAE starts in a few weeks, not too far away. Let's look at the most runs in the National T20 Cup. Mansour, strike rate of 125, 2,728 runs. Coming up more behind him with 2,381. Shoaib Malik. He's been around for a long, long time. He's still a fine player. 2,200. Umar Amin, just over the 2,000 mark, and Mohammad Hafiz, just under the 2,000 mark. Good work for that average, 49.8 from Shoaib Malik at a strike rate of 132. That's class. Khurram Manzoor and Kamran Akmal have played all the editions of the National T20. Other players missed out on a few due to different tours or other things. Pakistan's first T20 World Cup game is in Dubai. The second one is against, and that's a big one against India, of course. The second one against New Zealand is in Sharjah, and that's going to spin like a top. Those tracks are going to be worn. A lot of the Indian players will be used to them because they've been playing up there with the IPL. Almost 8 overs gone, no spin here for Balochistan. That's clever. That's very clever indeed. That's whipped away, using the pace, airborne, and 6 runs. Ruins a good over, a good 5 deliveries, 10 off in the end, 8 gone, 66 for 1.
Ball and change, gentlemen. पिछले ओवर के आखिरी गेंद जिस पे शानदार छक्का लगाया खुर्रम मंजूर भी, जो आज के मॉडर्न डे क्रिकेट में ये कहते हैं ना 360 प्लेयर है, शॉट चारों तरफ लगा सकते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल डोमेस्टिक सर्किट में तो कोई मुकाबला ही नहीं। हर मैच में इनके जो बल्ला है वो रन उगल रहा होता है, इसीलिए सारे एडिशंस खेले हैं ये नेशनल T20 के। बल्ले पे नजर रखना। 18 के 18 एडिशन उन्होंने खेले हैं। काशिफ भट्टी बड़ी शानदार फॉर्म में हैं, बड़ी अच्छी गेंद कर रहे हैं बलोचिस्तान के लिए इस टूर्नामेंट में। अभी तक काफी लोड संभाल लिया है, खासतौर पे यासिर शाह की इंजरी के बाद। शान मसूद ने काफ़ी टाइम लिया, लेकिन अब अच्छा सेटल हो गए हैं, स्ट्राइक रेट भी बेहतर हो रही है और अच्छी कप्तानी कर रहे हैं इमामुल हक। काफ़ी स्पेस इन्होंने, मैंने देख रही थी कि काफ़ी स्पेस दोनों साइडों पे दी हुई थी। बैट्समैन को टेम्प्ट कर रहे थे, कैरेट को डैंगल कर रहे थे ताकि वो अपनी शॉट्स लगाएं और इसी चक्कर में शायद उनको एक विकेट मिल जाए तो ये बड़ा अच्छा हो जाएगा, दूसरी विकेट। तो क्लेवर कप्तानी। बहुत आला काशिफ, क्या बात है काशिफ। चल भाई 2-4 कदम इस तरफ हो जाओ, ठीक है। क्या कंट्रोल में नहीं है ये शॉट, चांस है यहाँ पर लॉन्ग ऑफ के लिए और ये बड़ी विकेट। खुर्रम मंजूर बाहर निकल के इसको शॉट लगाना चाहते थे, गेंद थोड़ा सा स्पिन हुआ बाहर की तरफ, जिसकी वजह से सही तरह ये इस शॉट को अपने कंट्रोल में नहीं रख पाए और अच्छा कैच लिया, प्रेशर कैच, क्योंकि ये बड़ी विकेट है। जी हाँ, कंट्रोल में नहीं थी शॉट, बल्ले पे सही तरह आई नहीं और उनका ख्याल था कि 6 होंगे, लेकिन कैच हो गए। और ये देखिए, 2 किस्म की, जब कप्तानी की हम बात कर रहे थे, 2 किस्म की कप्तानी होती है। ये जो इन्होंने गैप्स दिए इसकी वजह से ये विकेट हासिल हुई। 67 फॉर 2। डेंट तो पड़ेगा GFS सिंध की प्लानिंग पर जब खुर्रम मंजूर कम स्कोर पे आउट हो जाएं। सऊद शकील ये भी पूरे पक्के बैट्समैन, सऊद शकील एक इंटीग्रल पार्ट है मिडिल ऑर्डर का GFS सिंध की। यहाँ ही कहा था कि काशिफ भट्टी ने बड़ी उम्दा बॉलिंग की है, लाजवाब लेंस। जी हाँ, बैट्समैन को टेम्प्ट भी किया है, उनको इनविटेशन भी दिया है कि वो नीचे कदम इस्तेमाल करके उनको रन्स हासिल करें और इसी तरह विकेटें भी हासिल की है। एयर में रिसीव किया है, अच्छी फ्लाइट दी है और बेहतरीन बॉलिंग सारे टूर्नामेंट में की। बाहर निकले थे खुर्रम मंजूर, गेंद की लाइन को कवर नहीं कर पाए, काफी दूर था बॉल उनकी बॉडी से और खेला जब शॉट तो बल्ला भी थोड़ा घूमा हाथ में। यूजुअली जब आप अटैक करने जा रहे होते हैं, हमने देखा है बैट्समैन जब कदमों का इस्तेमाल करें गेंद की लाइन के को कवर करते हैं। काशिफ जब आप बाहर निकलते हैं क्रीज से तो कमिट कर लेते हैं अपने आप को कि अब मुझे हिट लगानी ही है, क्योंकि मिस करना तो फिर तो खुदा हाफिज ही हुआ। सिकंदर, मॉडर्न डे बैट्समैन जो है आजकल आप देखते हैं इतना नीचे आके कदमों का इस्तेमाल करके नहीं खेलते, बल्कि वेट करके क्रीज में फिर पक्की शॉट लगाते हैं। आजा मेरी, आजा जल्दी जरा। 69, 2 खिलाड़ी आउट।
स्पिनर्स का काफी सही रहा है इस टूर्नामेंट में अभी तक। ये जो हमने 8 मैचेस देखे हैं, आते ही पहले ओवर में काशिफ भट्टी के लिए कामयाबी। और फिर अगर आप एक्स्ट्रा पास बॉलर्स को हटा दें, मीडियम पेसर्स जो हैं जिनके पास वेरिएशंस हैं, स्लो बाउंसर्स अच्छे कराते हैं, बैकअप द हैंड अच्छा कराते हैं, उनमें उमैद आसिफ भी बड़ी शानदार बॉलिंग करते हैं। ये एक और नाम उमैद अमाद भट्ट, इनके पास भी काफ़ी अच्छी गेंदें हैं। ये ऑलराउंड क्रिकेटर हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है बलूचिस्तान का। बैटिंग में, लोअर ऑर्डर में फिनिश करते हैं अच्छा। अच्छी गेंद बीट किया, अच्छी वेरिएशन है इनके पास, लेंथ भी बड़ी अच्छी इन्होंने कराई और लेंथ से भी बीट किया। इस दफ़ा थोड़ी सी बॉल बाहर निकली जिसकी वजह से बैट्समैन को कुछ पता नहीं लगा कि उनके साथ क्या हुआ, और इम्प्रूव पैकेज नजर आए हैं ये। दोनों बाएं हाथ से खेलने वाले बैट्समैन, और सऊद शकील से आप बड़े बड़ी हिट्स की तवक्को ना रखें, ये बड़ा क्लासी बैट्समैन है। शान मसूद भी वैसे हैं, लेकिन शान मसूद ने अपने जो उनकी आर्टिलरी है उसमें काफ़ी डिफरेंट शॉट्स अब ऐड कर लिए हैं, तो अगर बड़े शॉट्स की ज़रूरत पड़ी तो वो भी लगा सकते हैं। लेकिन अभी इस सिचुएशन में अच्छी चॉइस है ये दोनों बैट्समैन। इन दोनों को 15 ओवर तक लेके जाना है, रन बनते रहे 7-8 हर ओवर में। क्या बात है। एक टारगेट तो जहन में हो गई, क्योंकि टॉस जीता है सरफराज ने, बैटिंग का फैसला किया है। 160 तक तो उम्मीद रखनी चाहिए। जी हाँ, कंफर्ट जोन से हट के सरफराज ने आज फैसला लिया। वो हमेशा बॉल करते हैं, चेस करना पसंद करते हैं, लेकिन आज उन्होंने पहले बैट किया। और पिच की बात, अब स्पिनर्स की बात करे थे तो थोड़ी ब्रेक ज़रूर नज़र आई सारे टूर्नामेंट में, और बड़ा अच्छा है ये जो 150-55 का एवरेज स्कोर है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी प्रिपरेशन है ये वर्ल्ड कप के लिए। अगर बेल्टर दे देते तो फिर वर्ल्ड कप में जाके क्या होता, तो बेहतर है कि ये प्रिपरेशन यहाँ पर अच्छी हो। क्यूरेटर्स को फुल मार्क्स मेरी तरफ से। तो ये बहुत ही अच्छी पिचेस बनाई है इन्होंने कि टेस्ट हो रहे हैं बैट्समैन अगेंस्ट स्पिन, अगेंस्ट वेरिएशन। बिस्मिल्लाह खान का जवाब नहीं, बड़ी शानदार कीपिंग की है इस टूर्नामेंट में अभी तक उन्होंने। ये वाइड था बॉल, चांस लिया आजकल T20 में, लेग स्टंप के बाहर गेंद हो उसको भी बैट स्विंग करते ही है बैट्समैन। अच्छा काम किया है यहाँ बिस्मिल्लाह ने ऑन द बाउंस। जी अच्छी कीपिंग की। पिछले मैच में भी बड़े अच्छे उन्होंने स्पिनर पे कैच लिए, यासिर शाह की बॉलिंग पे एक इनसाइड एज और एक बड़ा बाउंस था कैच में, बड़ा अच्छा, बहुत ही अच्छी कीपिंग कर रहे हैं। और जैसे आप कह रहे थे सिकंदर के इस पार्टनरशिप को आगे लेके जाना है, 15वें ओवर तक लेके जाना है, और फिर आके सरफराज और दूसरे जो प्लेयर्स हैं सिंध के वो अटैक कर सकते हैं, अनवर अली बिल्कुल। और सऊद शकील ने उस दिन भी जो पिछले मैच था उसमें भी बहुत अच्छी 2 शॉट्स लगाई हैं, उसके बाद वो रन आउट हो गए। तो आज इनको उस दिन की अगर किस्मत इनका साथ दे तो हम कुछ अच्छे क्लासिकल स्ट्रोक्स इनके बल्ले से देख सकते हैं। बड़ा अच्छा इनका स्टांस है, बैलेंस बड़ा अच्छा नजर आता है। रनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, और हर हाल में इस फॉर्मेट में रनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने स्ट्राइक रोटेशन को रखना है, खासतौर पे जब बैट्समैन नया आया हो तो उसकी कोशिश यही होनी चाहिए कि वो ज़्यादा बॉल्स कंज्यूम नहीं करे। स्ट्राइक की होते हुए सऊद शकील और शान दोनों इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। वही बात है, अभी हमने देखा प्रेडिक्टेड स्कोर 165, इतना तो बनना चाहिए। 72 2, अभी हाफ वे, 1 गेंद रह गया है इनिंग्स की। क्रिकेट काफ़ी चेंज हो गई है अब, वनडेज में आखिरी 10 ओवर में 100 बनते हैं। टेस्ट मैचेस में आप दिन में 100 रन को टारगेट करते हैं, सॉरी सेशंस में। ओवर मुकम्मल, 10 ओवर्स के बाद 73, 2 आउट।
देखिए लेना, अगर ये किसी के दांत होते तो हम कहते कैविटीज हैं। ये शुरू में कुछ नहीं हुआ, पहला ओवर मेडन रहा पावर प्ले में और 5वां ओवर भी ऐसे ही गया, 1 रन ही बना उसमें, तब भी 40 से ऊपर कर लिया पावर प्ले में। आप देख सकते हैं बड़ी पुरसुकून जगह चुनी है, लेकिन ये गर्म कितनी हो जाती होगी जब लाइट्स ऑन होती होंगी। तो 2 ओवर्स ऐसे गुजरे, इसमें सिर्फ 1 ही रन आया पावर प्ले में। अच्छा देखें, इम्प्रोवाइज किया काशिफ भट्टी ने, देखा कि बाहर निकल के अटैक करना चाह रहे हैं शान, तो बाहर कर दिया गेंद। जी हाँ, अच्छे बैट्समैन के माइंड को और बॉडी लैंग्वेज को रीड किया और बाहर किया बॉल, जिसकी वजह से वो तकरीबन रिसीव हो गए, और अगर हो जाते तो यकीनन स्टंप हो जाते। अच्छी गेंद कर रहे हैं और इस दफा हल्के से धीरे से खेला और 1 रन हासिल किया। बैट्समैन को भी पता है कि मुश्किलात हैं विकेट में, इतनी आसानी से रन हासिल नहीं होंगे। बाहर निकल के कदमों का इस्तेमाल करके भी देख रहे हैं, रिस्ट वर्क भी इस्तेमाल करके देख रहे हैं, तो थोड़ा सा धीरज और वो रखना पड़ेगा इनको। जबरदस्त शॉट 6 रन के लिए, और इस दफा शान मसूद ने अपना फुल सलाहियत का इस्तेमाल किया, 1-2 कदम नीचे आए और बहुत ही शानदार 6 रन हासिल किए। काशिफ कोई बात नहीं, काशिफ कोई बात नहीं, काशिफ जरा ज्यादा टाइम दे दिया, गेंद का इंतजार किया, लेंथ में जरा सा चूक गए काशिफ भट्टी। यहाँ पर हल्की सी शॉट थी गेंद और रीच ज्यादा है, 6 फुट से ज्यादा हाइट है शान मसूद की। हल्का सा रॉक बैक किया, रन आउट, डायरेक्ट हिट हुई तो हो गया, और ये मुश्किल है यहाँ पर शान मसूद के लिए। थोड़ा बहुत उनको अंदाजा हो गया है कि उनके लिए कर्टन्स हो सकते हैं यहाँ, ये फायदा होता है। बहुत तेज शॉट लगाया था, इतनी जल्दी फील्डर के पास बॉल चली गई। ये कंप्लेन है शान मसूद की कि जो झिझक थी सऊद शकील की कि वो बॉल वॉचिंग कर रहे थे, उस पर कॉस कर दिया इन्होंने शान मसूद को। डेफिनेटली ये नुकसान उठाना पड़ेगा यहाँ जेएफएस सिंध को। जी हाँ, अंडरस्टैंडिंग की कमी नजर आई, झिझक उन्होंने दिखाई, और ये दूसरी दफा इन्वॉल्व हो रहे हैं शकील जो हैं रन आउट में, और आउट करा दिया एम्पायर ने, थर्ड एम्पायर ने उनको। और शान मसूद एक बेहतरीन छक्का लगाने के बाद अब पवेलियन में वापस, रन आउट की सूरत में निहायत अनलकी ये एक तरीका कार है आउट होने का, और अंडरस्टैंडिंग बेहतर करनी पड़ेगी। 81 पर 3 खिलाड़ी आउट। नहीं 3-4 ओवर की बात है, लेट थोड़ा पुश कर लो, ये टाइम देख ले, इसको टाइम देख ले जरा। कप्तान आ गए हैं, नॉन स्ट्राइकर पे हैं कप्तान, और उनके आने की वजह बने हैं शान मसूद का रन आउट। देखना पड़ेगा कि कहीं झिझक थी उस सिंगल को लेने में, क्योंकि शिकायत थी जैसे मैंने कहा शान मसूद की सऊद शकील से कि वो बॉल को देख रहे थे, अपने पार्टनर को नहीं। ये देखिए जो उन्होंने झिझक दिखाई, हालांकि शान मसूद रुक नहीं रहे थे इस सिंगल के लिए, बॉल वॉचिंग ये गलती है। और जब विकेट के आगे बॉल गई तो ये स्ट्राइकर की कॉल होती है, और नॉन स्ट्राइकर का कोई तुक नहीं बनता हेजिटेशन शो करने का। सिंगल के साथ स्ट्राइक अपने पास रखेंगे सरफराज। स्कोर हो गया 83, 3 आउट।
स्टार्ट्स मिले लेकिन कन्वर्जन नहीं हो पाया। मसूद 31, शर्जील 34। आगे हो, ज्यादा हो गया, ज्यादा ये 1 224 मैच, 89 और आउट्स हाईएस्ट इनका स्कोर। ओ खतरा, गेंद बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से 30 यार्ड का सर्कल क्रॉस कर गई। आई थिंक बैट के शोल्डर पे लगा है ये बॉल। बाउंस थोड़ा ज्यादा हो गया, जितना एक्सपेक्ट शायद नहीं कर रहे थे सरफराज। और यही कुछ लोगों को एतराज है कि अनइवन बाउंस है इस विकेट में, कुछ बॉलें नीचे रह जाती हैं, कुछ बॉलों को बाउंस मिल जाता है। तो सरफराज सरप्राइज हुए बाउंस से मात बट के, और लकी रहे कि बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से बॉल गई। और सरफराज पे बहुत जिम्मेदारी है क्योंकि कप्तान है। ये मिडल ऑफ द इनिंग्स का एक फेज है जो जिसके लिए वो फेमस भी हैं कि बड़ा अच्छा खेलते हैं उसमें। तो ये इस वक्त क्योंकि अभी विकेट गिरी है तो उनको ज़रा थोड़ी देर खेलना पड़ेगा अपनी टीम को आगे ले जाने के लिए। सऊद शकील, उन पे काफ़ी दबाव होगा क्योंकि वो रनआउट में इन्वॉल्व हो चुके हैं अभी, और जाहिर है यंग प्लेयर हैं, खुद भी अपना अभी टीम में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अपना टैलेंट शोकेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में रनआउट कराना सीनियर बैट्समैन को जो अपसेट हो रहा हो, जाहिर है वो उनके लिए कोई इस वक्त बहुत अच्छा नहीं फील कर रहे होंगे। तो अब वो ज़रूर चाहेंगे कि 40-50 की ऐसी इनिंग्स खेलें कि लोग भूल जाएं कि उन्होंने शान मसूद को रनआउट कराया था। एक बार फिर जरा सा हवा में रहा शॉट थोड़ी दूर के लिए, लेकिन बॉलर थ्रू से दूर था। रनआउट एक बार फिर देखते हैं जिसमें सऊद शकील और शान मसूद इन्वॉल्व। देखें सऊद शकील को, देखें नॉन स्ट्राइकर पर बॉल देख रहे हैं, फिर झिझक, और उसके बाद खुद तो टहलते हुए अपनी क्रीज में पहुंच गए लेकिन पार्टनर को कुर्बान कर दिया। सिकंदर, उनके झिझक बनती नहीं थी, कॉल ही स्ट्राइकर की थी, विकेट के आगे बॉल खेली गई थी। तो ये बेसिक्स हैं जो हर एक प्लेयर को पता होने चाहिए इस लेवल पर, कम से कम इतने बेसिक जरूर पता होने चाहिए। असल में फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड की बात है, इतना जोरदार शॉट था कि वो सीधा इमाम के पास गया ऑन द बाउंस, तो ऑटोमेटिकली आप देखते हैं बॉल जा कहां रहा है। ओह, इस बार फिर हवा में शॉट खेला, काफी बॉटम हैंड दोनों प्लेयर्स की तरफ से। जी हाँ, ये अपिश शॉट जो सरफराज ने खेला, दोनों शॉट्स जो अभी तक उन्होंने खेले अपिश रहे, लकी रहे। इमाद बट अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बाउंस मिल रहा है उनको, इम्प्रूव क्रिकेटर नजर आए हैं, कमिटेड क्रिकेटर हैं, सीरियस क्रिकेटर हैं। ऐसे क्रिकेटर्स की ज़रूरत है पाकिस्तान को। ये सिलसिला अब रहेगा स्ट्राइक रोटेशन का कुछ टाइम तक, और ये ऐसा फायदेमंद भी है जीएफएस सिंध के लिए, क्योंकि अगर आप 165 को टारगेट कर रहे हैं तो अभी भी कुछ 70 रन चाहिए आपको, बाकी मांदा 8 ओवर्स में। ये प्रोजेक्टेड स्कोर्स आपको दिख रहे हैं अपने स्क्रीन के नीचे, इसमें 9 और 11 रन फी ओवर, यहाँ कहीं सेटल होना पड़ेगा इसके बीच में। जी हाँ, सही कह रहे हैं आप। एक मिडिल पाथ एक इंटरेस्टिंग पाथ होता है, अमूमन ऐसा ही होता है। सरफराज के पास रहेगी स्ट्राइक, 12 ओवर्स का खेल मुकम्मल, 90, 3 खिलाड़ी आउट जीएफएस सिंध।
90 for 3. So Shakil and Sarfraz with the opportunity to bat these 8 overs and get GFS Sindh to a big score. Sarfraz won the toss and batted first. He wanted, oh, interesting. Just meandering along. But Sarfraz won the toss and wanted to bat first because he wants to give his team the opportunity. There's a lot of games, so that once they come under pressure, they can handle every situation. Easy, easy, Aja. First time, first time. Sana had a look at the pitch this morning. Is it slightly better today? Is the ball coming on to the bat? It seems like the same pitch that we have been seeing, but there are a bit more cracks, and I would really like that to see Zahid Mahmood bowling on this pitch. Balochistan don't have that wrist spinner. They didn't go for that option, and there was a chance. Was in the air but out of reach. Sarfraz more often than not against spin hits the gaps. So from this end where Kashif Bhatti is bowling, there are a bit more cracks for the spinners. So if Zahid Mahmood bowls, I would be really interested to see that. Balochistan did not go for the option of Mohammad Mohsin. Sweep shot into the gap. Sarfraz trademark shot. Boundary. And against a bowler like Kashif Bhatti, who doesn't spin it too much, a very good shot by Sarfaraz. He loves sweep. We all know that that's his bread and butter, and excellently, well, wonderfully executed there. He's having a very good year in T20 cricket. Sarfraz averaging 47. Strike rate 131. He's also hit 3 half centuries. So this year, especially with the bat, it's been good for him. He's always played really well against spinners, but have really improved against the fast bowlers as well. The 100 comes up at the end of 13. Just 1 over of Kashif Bhatti remains as a spin option. We'll have to go back to pace. Oh, keeping close eye on everything. Some would say Hawkeye. Umayyad Asif back in the attack. He's replacing Ahmad Butt. And the loss of Yasir Shah, because Yasir Shah got injured, has a hairline fracture, has dented the Balochistan bowling, which looked like a complete unit with Yasir Shah, with these fast bowlers, and Kashif Bhatti. So what we've seen is 170 batting first tenure in the game. So far in this tournament, the day games, every single game has been won by the team chasing. So 11 and over, a minimum. Yeah, very interesting
decision by Sindh. They have played 2 games, won both while chasing. And the afternoon games, all 4 have been won by teams chasing and bowling first. So they want to go opposite the trend. And the running between the wickets, when we have been talking about KP in particular, when Rizwan is batting with Fakhar Zaman or someone else, the running is very aggressive. We have seen a couple of runs by Sarfaraz walking down. It doesn't help putting that extra pressure onto the opposition. So even if it's a 1, it's better that you keep running and be aggressive. I'll come to your favorite topic. They've got 2 power hitters, Danish Aziz and Anwar Ali, to follow. And you've been advocating the best players getting a lot of overs. Now, Danish Aziz and Anwar Ali are known to be hitting the ball out of the ground for fun. So how many overs do these 2 require to actually make sure that Sindh, GFS Sindh, get to that 170, 180 mark? Good bowling by Umayyad Asif. It could have been close if it had hit directly. Just sticking in the pitch through the shot too quickly. Q end. Direct hit would have been interesting, but so far this over, just 4 singles. Coming to your question, the platform has been set. They still have wickets in hand, although I do feel that Sindh had the opportunity to get 1 more batter in with that window that PCB provided for the trade in. But the good shot, excellent shot by Saud Shakil. The platform is set and he's applying himself. The ramp shot, and it's such a highly skilled shot. We take it for granted nowadays because everybody plays it. It's really nicely done. Made sure he got bat on it, which is very important, but Imam not happy, but you have to give credit to Saud Shakil right now because of that improvisation. Eight off the 14th, it's 108 for 3. Need those taller buildings now. Back end of the innings, 36 deliveries remaining, 7 wickets in hand, and you would think that the charge should be on. More protection leg side, short fine leg in place. Call for 2, but just a single. So every delivery now which doesn't go to the fence is a victory for Balochistan. That's the ramp shot. Very well executed. Saud Shakil had the head very low, was watching the ball till the very end. He was low in his stance. Just not being able to time the ball with the spinner. Maybe there's a bit more bounce in the pitch as well. But the flat patch shots through the offside so far haven't worked. Balochistan is definitely missing the leg spinner, Yasir Shah. They had the option of Mohsin.
Would be very interesting to see how Zahid Mahmood is going to operate on this pitch. Smash leg side this time. Sarfraz with a good connection. He's definitely made a very good connection there. There were two fielders on the leg side, deep square, deep mid wicket. But with a very good contact, he was able to pierce the field. Yeah, slightly flattered that time by Kashif Bhatti, and that allowed Sarfraz the pace to work with. Slows it up. Spin and bounce, so not the same connection. Maybe that's the way to go. Just one more delivery to go, but whenever he's tossed the ball up or reduced the speed, he's been more effective. Yes, that's a very good observation. He has been very flat with his trajectories. Call for a single and he makes it in the end. So 15 done, it's 116 for 3. Five overs remaining. Akif has a couple of overs. Ahmad and Khurram, the other options. Flashing lights. It's going to turn on the gas. Shajil going leg side. Medas is just good length bowling and a good catch in the deep. And Khurram Manzoor trying to go big and long. Not enough connection. Kashif Bhatti successful. Shah Masood hit it straight to cover and was run out by a long way. Shajil was hitting the ball really well. We were slightly disappointed that he didn't carry on for a bit longer. Now onus on Sarfraz and Shahid Shakil to get the boundaries flowing. Shahid Shakil striking at 100. Hit into the offside. Just a single. And Akif Javed has replaced Junaid Khan in this lineup. He has been quite expensive in the first spell. He will have to come back for Balochistan. In absence of Junaid Khan, Yasir Shah, it's important. His 2 overs are going to be very crucial. A short mid wicket in the circle now. Fine leg goes out. What length will he bowl as he goes short now? Yeah, shot into the pitch. In other singles, a good result. So last couple of overs, he's been very good from Balochistan. And they will have to continue doing that because the average score at Pindi Stadium in National T20 has come down to 150. And last year it was around 173. So 23 runs difference, so they cannot leak runs at the end. Just over point. Will this get to the fence? Yes, it does. Not where he intended, but the result, well, he'll be happy with that.
And Saud Shakil this time, there was width on offer. Akif Javed in the first spell was expensive. Already 6 of the first 4. Good shot there for the boundary. Ram shot, back-to-back boundaries. Saud Shakil on the charge. Excellent batting there. That's the over Sindh were looking for, and they have targeted the bowler. Akif Javed was expensive, and this time walking to offside, keeping that head low, watching the ball till the end, doing everything right, Saud Shakil. And he played this really well. He guessed that once that short ball had gone over .4, a boundary, that Akif would probably venture full. And he gambled, and it was successful. Pressure on. We'll have to re-bowl that. And Sindh has definitely got a weak link in Balochistan's bowling, and today it is Akif Javed. And these are the run rate for National T20. Just look at that. In 2021, it has gone down again to 7.62. Last year, 8.88. Beautiful shot. Pitched up, mid-off in the circle. He's just timed that over the top. Pure batting. That's the 50 partnership between Sarfaraz and Saud Shakil, with one of the best shots today so far. Just look at that, on the up. Well timed, held the bat. Excellent shot there. Saud Shakil is offering us a treat to watch. $15 off this 16th over, last delivery. Go short, just be a single. But a good over. 132 for 3. South right down over the wicket. ये देखिए पावर प्ले के बाद 3 विकेटें गिरी थी, यके बाद दीगरे 5 ओवर्स में 3 खिलाड़ी आउट हुए, जिसकी वजह से जो रन रेट थी वो भी मुतासिर हुई। लेकिन अब एक बार फिर सिंध के लिए इस पार्टनरशिप ने सर उठाया है। 33 गेंदों में 51 रन्स दोनों मिलजुल कर बना चुके हैं। सऊद शकील ने दिखाया है एक बार फिर अपना बैटिंग टैलेंट इस फॉर्मेट में भी। वाकिफ का 1 ओवर बाकी है, खुरम शहजाद के 2 ओवर्स बाकी हैं। सऊद शकील इनको किस्मत का शुरू में साथ मिला, उसके बाद उन्होंने जो लैप शॉट्स खेले और ये अनमोल टाइमिंग थी। बिलाशुबा इसे हम शॉट ऑफ द डे कह सकते हैं, शॉट ऑफ द टूर्नामेंट भी कह सकते हैं। अच्छा फ्लिक शॉट, लेकिन रन एक ही मिलेगा क्योंकि फील्ड को बिल्कुल खोल दिया गया है। लेग साइड में लॉन्ग ऑन पर अब्दुल्ला शफीक हैं, डीप मिड विकेट पर इस वक्त काशिफ भट्टी हैं, डीप स्क्वायर लेग पर हारिस सोहेल। ये देखिए राइट हैंडर सरफराज अहमद के लिए लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट है, डीप स्क्वायर लेग पर भी एक खिलाड़ी को खड़ा किया गया है। इसे हवा में खेला, यहाँ पर गेंद गैप में चली है,
और दूसरा रन भी ले जाएंगे सरफराज अहमद, जो बहुत अच्छा दौड़ते हैं विकेटों के दरमियान। 81 रन पर तीसरी विकेट गिर गई थी और दबाव में लग रही थी सिंध की टीम, लेकिन कप्तान सरफराज ने एक और बड़ी उम्दा इनिंग्स खेली है। सऊद शकील अपनी फॉर्म को कैश करा रहे हैं। अभी हाल ही में इंग्लैंड में भी अच्छी बैटिंग की थी सऊद ने, खासतौर पर जो लॉर्ड्स का वनडे था उसमें निस्फ सेंचुरी स्कोर की। फुल टॉस, लेकिन रन एक ही मिलेगा। सही तरह कैच नहीं करा सके इस डिलीवरी को सरफराज अहमद, शायद वो तवक्को भी नहीं कर रहे थे। तो 8.24 है रन बनाने की मौजूदा औसत, लेकिन जो टूर्नामेंट की औसत है वो इससे कम है। यहाँ जो टूर्नामेंट की औसत है वो 7.6 है। सिंध की टीम उससे आगे है, यानी औसत स्कोर से ये ज्यादा बनाने की पोजीशन में है। 7 विकेटें इनके हाथ में हैं। और बॉल्ड कर दिया, अपनी स्टंप्स को एक्सपोज करके ज्यादा आगे चले गए थे। एक बार फिर चालाकी से शॉट खेलने की कोशिश की सऊद शकील ने और रफ्तार कम की। ये देखिए कटर फेंका था, सऊद आगे गए और उनकी ऑफ स्टंप उखड़ गई। खतरनाक पार्टनरशिप का खात्मा किया खुरम ने। सऊद शकील से उनने पीछा छुड़ाया, जो 32 रन बना सके। सिंध 136 पर 4। Middle perfect. Right arm over the wicket. पहले मैच में 29 रन बनाए थे, दूसरे में 31 अनवर अली ने, और ये स्ट्राइक रेट इनका दूसरों से इनको मुमताज करता है। जब बसरा की बात की जाती है तो ये 50 का है, हालांकि औसत ज्यादा नहीं है। पाकिस्तान की जानिब से 16 T20 आइज भी खेल चुके हैं अनवर अली, और इन दिनों उन्होंने बड़ी अच्छी हिटिंग की। ये बहुत अच्छे स्ट्रोक्स खेल रहे थे लेग साइड की जानिब, लेकिन इस बार गेंद देर से आई, शॉट को पहले खेल बैठे सऊद शकील, इसलिए मेल नहीं हुआ गेंद और बल्ले का। एक रन मिलेगा अनवर अली को, उन्हें अपना अकाउंट ओपन किया। बड़ी शानदार बॉलिंग डेथ ओवर्स में खुरम शहजाद की सिर्फ 5 रन और 1 विकेट इस ओवर से 137 पर 4। देखिए तमाम ही बैट्समैन जो हैं डबल फिगर में आए हैं, जो आउट हुए, लेकिन इनको बड़ी इनिंग्स नहीं देखने में आई। 34 रन बनाए शर्जील ने सिर्फ 20 गेंदों में। शान मसूद, सऊद शकील ने भी अच्छी बैटिंग की। खुरम मंजूर जिन्होंने पहले मैच में 84 रन बनाए थे, आज काशिफ भट्टी का शिकार हुए।
अच्छा रन, खासी सलाहियत है सिंध के पास इस लॉन्ग ओवर्स में हिटिंग करने की। उनके पास दानिश अजीज हैं जो ये हरबा इस्तेमाल करना जानते हैं। सरफराज अहमद खुद अच्छी हिटिंग करने की अहलियत रखते हैं, बड़ी तेजी के साथ रन बनाने की सलाहियत है उनमें। और इस साल इन्होंने बहुत रन बनाए, 378 रन बना चुके हैं 47 की औसत से सरफराज अहमद, और जो स्ट्राइक रेट है वो 31 का है। और ये गेंद ज्यादा उछल गई थी, इस बार आउट होने का खतरा, लेकिन ये दो फील्डर्स के दरमियान गिरी। सरफराज अहमद जो हैं कई बार झुके हुए होते हैं, पहले ही शॉर्ट गेंद को सही तरह निगोशिएट कर नहीं पाते, इस बार भी ऐसा ही हुआ। ये देखिए, अच्छा मुझे लगता है कि ज्यादा बेटर पोजीशन में आ जाते हैं इस स्टांस से। ये स्टाइल है, फास्ट बॉलर स्पिनर कोई भी हो। अगर आपको याद हो तारिक साहब, तो ब्रायन लारा भी ऐसे ही करते थे, नीज बेंड होती थी जब वो बिल्कुल फेस करने जाते थे गेंद को, आई लाइन पे आ जाती थी बॉल बिल्कुल। लेकिन हमने देखा है खुर्रम मंसूर जो हैं कई बार वो भी ज्यादा झुके हुए होते हैं, और जब आप तवक्को नहीं कर रहे होते हैं शॉर्ट गेंद की, खासतौर पर अगर लेंथ या शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ से जो गेंद ऊपर आए तो उस पर फिर मुश्किल हो जाती है। ये अच्छा शॉट लगाया है, इस बार 4 रन्स। हालांकि फील्डर ज्यादा फासले पर नहीं थे, लेकिन संभलने का मौका नहीं दिया सरफराज अहमद ने। अच्छा टाइम करने में कामयाब हुए कप्तान। मुझे लगता है उनको पसंद नहीं आई आपकी बात। पुल करके दिखा दिया उन्होंने आपको। क्राउच पोजीशन जो इनकी है, इनका स्टाइल है। हम देखें बाएं लेग को, बाएं पैर को उन्होंने थोड़ा सा साइड में किया, अपने लिए जगह बनाई, फ्रंट ऑन फेस किया इस बॉल को, और इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर खेला ताकि उनको गैप मिल जाए। स्क्वायर लेग को भी बीट कर दिया, वाइडिश मिड विकेट को भी। एक और दिलकश स्ट्रोक, लेकिन इमामुल हक ने ये बाउंड्री बचाई। एक ही रन तक उन्होंने महदूद किया। अच्छी फील्डिंग, कप्तान ने कप्तान का शॉट रोका। सही फैसला था सरफराज का, क्योंकि ये जो डाइव लगाई थी बाएं तरफ लगाई थी इमाम ने, और ये बाएं हाथ से ही थ्रो करते हैं, उनका स्ट्रॉन्गर आर्म था, तो अच्छी रिकवरी भी रही। ये इनको टर्न अराउंड करके मुश्किल नहीं हुई गेंद को फेंकने में। अच्छा मैदान है ये डाइव करने के लिए, हालांकि फील्डिंग का म्यार कई टीमों का अच्छा नहीं रहा। यहाँ पर कैचेस गिरे हैं, लेकिन यहाँ हम देखते हैं खासी हरियाली है, बिल्कुल हमवार आउटफील्ड, आप डाइव कर सकते हैं। जहाँ ये तो वाइड भी जाएगी, और कैसर वहीद ने बिल्कुल ऐसा ही किया। अच्छी फील्डिंग रही आज बलोचिस्तान की, काफी अच्छे शॉट्स में रोके, डाइव लगाकर सभी ने अपने कमिटमेंट दिखाई, 100% कमिटमेंट। रनआउट भी हासिल किया, बड़ी विकेट थी शान मसूद की, और कोशिश किया है कि सर्कल से बाहर को बॉल ना जाने दें। ये वो रनआउट था, इमामुल हक खुद थे फील्डर उस मौके पर, और ये अभी थोड़ी देर पहले एक बार फिर इमाम। और खेला है फाइनल के फील्डर दायरे में थे और उसका बराबर फायदा उठा लिया। इस बार शॉर्ट डिलीवरी और उस रफ्तार को और एंगल को काम में ले आए अनवर। हाँ, थोड़ा सा अंदर लेके आए गेंद को अपने लाइन के, जो बॉडी की लाइन होती है, और उसको बड़े आराम से खेल दिया। इतनी ज्यादा हाइट दे बैठे यहाँ पर आकिब जावेद, ये जानते हुए कि फाइनल एक सर्कल के अंदर है। ये जरा डेंजरस प्लॉट था इस लेंथ पे बॉल करना। बड़ी जल्दी कदमों का इस्तेमाल अच्छा करते हैं क्रीज के अंदर। अनवर अली अच्छी पोजीशन में आ गए थे बहुत जल्दी। अच्छा बड़ा ओवर चल रहा है ये तारिक साहब, 13 अभी तक हासिल हो गए हैं, एक गेंद बाकी है। इस बार अच्छा कनेक्शन नहीं था, लेकिन रन फिर भी मिल गया। तो 14 रन्स का ये ओवर आकिफ का। सिंध का स्कोर 151, 4 विकेट खोकर।
देखिए तीसरी जो 50 है कितनी जल्दी बनाई गई है 29 गेंदों पे, क्योंकि अभी इनके पास अब ये अनरवली हैं, अच्छी परफॉर्मेंस है इनकी अभी तक टूर्नामेंट में बल्ले के साथ 150 मुकम्मल कर लिए। 12 गेंदों पे जो हम बात कर रहे थे 165 70 हासिल हो सकते हैं आराम से। 12 गेंदों पे 20 रन भी मिल जाए तो 171 हो जाएगा। इस बार फील्डर पहुंच गए थे। हारिस सिंध की टीम जो है पहले जो दोनों मैचेस जीती बाद में बैटिंग करके, पहला मैच इनको 176 रन बनाना पड़े थे, तो इस बार ये अच्छा सीजन रहा है, अच्छी इब्तिदा की है सिंध ने। पिछले बरस सेमीफाइनल खेला था। सरफराज अच्छी कप्तानी कर रहे हैं, टीम मुतवाज़िन लगती है। 6 बॉलर्स की खिदमत उनको हासिल है, बैटिंग लाइनअप तवील है। स्लोअर साइड पे चला गया ये विकेट, स्पिन बड़ा काम आएगी। स्पिन ऑप्शंस जीएफएस सिंध के पास काफी हैं और यहां थोड़ा सा लगता है चूक गए। शायद मोहम्मद मोहसिन आ सकते थे लेग स्पिनर के तौर पे बलूचिस्तान के लिए, क्योंकि हमने पावर प्ले के बाद तकरीबन 9वें-10वें ओवर में देखा विकेट थोड़ा स्लो हो गया, गेंद पास क्या आ रहा है। और आई थिंक सरफराज अब इसी प्लॉय को अपनाएंगे। ज़रा सा गेंद पुराना होगा, फिर ये दानिश अजीज़ भी एक ऑप्शन है इनके पास, लेफ्ट आर्म स्पिन जाहिद महमूद हैं, तो इनके पास तो काफ़ी लंबी फहरिस्त है जो बॉलिंग कर सकते हैं। सऊद शकील भी कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो। स्लो डाउन करना हो अगर गेम को तो सरफराज इसमें काफ़ी ऑप्शंस के साथ हैं। ये अच्छी बल्लेबाजी है लेकिन फील्डर पहुंच गए। एक रन दूसरे के लिए जल्दी करनी पड़ी, लेकिन ये सरफराज अहमद हैं, विकेटों के दरमियान दौड़ने में इनका कोई सानी नहीं। डाइव करके पहुंचे, ज्यादा एक्साइटमेंट फील्डर्स की तरफ से नजर नहीं आई। यह शॉट सरफराज के पीछे लगा था तो इसलिए वो पहले ही निकल गए थे दूसरे रन के लिए। जब आप पहला तेज दौड़ते हैं तो आपके पास अच्छा मौका होता है कि आप कवर कर लें। यहाँ पे आराम से इन्होंने कवर किया इसको। जब बड़ी स्क्रीन पर यह फैसला तहरीरी आ गया, नॉट आउट अंपायर इम्तियाज इकबाल का। सरफराज अहमद की विकेटों के दरमियान रनिंग देखकर जावेद मियांदाद की याद आ जाती है, जो पाकिस्तान के ऑल टाइम सबसे अच्छे रनर थे। नोटिस कीजिए यहाँ पे देखें कितना ये स्टाइल है इनका, अनवर अली का। बिल्कुल अंदर चले जाते हैं, ऑलमोस्ट इनका दायां बूट जो है वो स्टंप्स पे होता है, उसकी जड़ में। एक्स्ट्रा इनको एक लम्हा मिल जाता है बॉल को खेलने का, और गेंद के जो कहते हैं ना कि अंडर द बॉल आके आप बड़ा शॉट लगाते हैं, तो आखिरी लम्हात में इनिंग्स के इनका ये अच्छा प्लॉय होता है। ये खड़े होंगे अपनी जगह पे ऐसे ही क्रीज के बिल्कुल टॉप पर, कि आखिरी लम्हे में ये बिल्कुल डीप चले जाएंगे क्रीज में। ऊंचा शॉट लेकिन सेफ एरिया में लैंड हुआ। 2 रन और हासिल हो गए। ये अनवर अली का फायदा है डाउन दी ऑर्डर। ये आपको कभी कभार ऐसा होता है कि 26-29 रन दे देते हैं 9 गेंदों पर। इस बार 11 बनाए हैं, अभी एक और बाकी है, तो इनका टारगेट यही होता है कि क्विक फायर 25-30 अगर बना दें टीम के लिए तो वो एक्स्ट्रा बूस्ट मिल जाता है। जी हाँ, और जब आपके पास अच्छे ओपनर्स हों, अच्छा टॉप ऑर्डर हो, खुरम मंजूर, इनके अलावा शर्जील खान है, तो फिर वो टीम सही कंबाइंड भी हो जाती है। T20 की यही ज़रूरत होती है कि आपके पास ये आखिरी 4 ओवर्स खेलने के लिए ऐसे बैट्समैन होने चाहिए, अनवर अली जैसे, और जो आड़े हाथों ले सकें। ये कर दिखाया, फुल टॉस और मुंह की खाना पड़ी, रफ्तार कम की थी। यहाँ पर खुर्रम ने इसी रफ्तार से उन्होंने विकेट हासिल की पिछले ओवर में, लेकिन ये बल्ले पर आ गई। आप देखिए कितना फ्रंट ऑन होते हैं, बायां पैर साइड में किया उन्होंने बेसबॉल के बैटर की तरह, और फुल टॉस मिल गई तो फिर क्या बात है। ये खतरा लाहक होता है ऑपोजिशन को जब अनवर अली ऐसे फॉर्म में हो और बड़ी हिट्स लगाना चाह रहे हो। ये यॉर्कर करना चाह रहे थे, ये देखते हुए कि अनवर अली बहुत डीप है अपनी क्रीज में, चूके हैं तो ऑब्वियसली फिर नुकसान उठाना पड़ेगा। इस ओवर में अभी तक 12 मिल चुके हैं, अभी भी एक गेंद बाकी है। आप देखिए कितना अंदर चले जाते हैं, बल्ला जो है वो ऑलमोस्ट स्टंप्स के पीछे है।
यह इसलिए जो नॉर्मल यॉर्कर है कई बार उसको खेलने का भी इनको ज़्यादा वक्त मिल जाता है, ओवर पिच पर ले लेते हैं। इस बार अच्छी क्रिकेट, अच्छा स्ट्रोक, फील्डिंग, फौरन थ्रो भी की। पिछले ओवर में 14 रन दिए थे, इस ओवर में 12 रन बने 163 पर 4। अभी दानिश अजीज को खेलने के लिए आना है। अनवर अली की फॉर्म को देखते हुए उन्हें दानिश से पहले बैटिंग कराई जा रही है। यहाँ आखिरी ओवर करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है उमैद आसिफ को, जो कि पवेलियन एंड से बॉलिंग करेंगे। तो ये सही तरीका है, इस पिच पर खासी मदद मिली है। गेंद जो भी स्लो करने की कोशिश की गई, खासतौर पर अच्छी लेंथ से, तो वो ग्रिप हुई है। सरफराज की इंस्ट्रक्शंस अनवर के लिए कि अगर मिस भी होता है तो वो दौड़ जाए ताकि स्ट्राइक पर आ जाए और बड़ी हिट्स लगाने में कामयाब हो। डॉट बॉल नहीं होना चाहिए, ये एक बस स्ट्रेटजी है जो बिल्कुल सही है। कनेक्ट ना कर पाए तब भी रन बन जाते हैं आजकल। थोड़ी सी तब्दीली, थोड़ा और पैकअप किया है ऑफसाइड की फील्ड को, जहां सिंगल ले सकते हैं सरफराज, बैकवर्ड पॉइंट। यॉर्कर को डिग आउट किया लेकिन रन एक ही मिलेगा। 187 सबसे बड़ा स्कोर है इस चैंपियनशिप का, जो कि केपी ने बनाया था सेंट्रल पंजाब के खिलाफ। वहां तक नहीं पहुंच सकेंगे, लेकिन इस पिच को देखते हुए और दोनों टीमों की कुवत को देखते हुए ये अच्छा स्कोर हो गया सिंध का। अगर ये पहुंच जाते हैं 175 तक तो खासे पापड़ बेलना पड़ेंगे फिर बलूचिस्तान को। ये मुझे लग रहा है पहुंच गए, इतना तो बनता है। 11 रन है और इस बार खेल दिया है गैप में 4 रन के लिए। आहिस्ता गेंद थी, अनवर अली इसे खूबसूरती के साथ कनेक्ट करने में कामयाब हुए। बड़ा जरूरी है, बल्ला जब आप घुमा रहे हैं और इंटेंशन है आपकी बड़े शॉट की, तो पूरा कोशिश करें। ये इनसाइड एजेस भी आपको फिर रन्स दिलवा देते हैं। तो कमिटमेंट आपकी पूरी है और आपने फैसला कर ही लिया है कि अब मारना है तो छक्का ही मारना है, तो फिर अनवर अली का जो ये फॉर्मूला है ये काम आ गया। इनसाइड एज और बॉलर कुछ नहीं कर सकता। अच्छा बॉल था, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां इनसाइड एजेस पे भी आप फील्ड नहीं खड़ी कर सकते। 3 गेंदें हैं इस इनिंग्स की बाकी। देखते हैं तारिक साहब के 175 आता है कि नहीं। या क्या ये शॉर्ट गेंद करेंगे इस बार? चाल इस बार लेंथ से ज्यादा इन्होंने अपनी लाइन को तब्दील किया। अनवर अली इसकी तवक्को नहीं कर रहे थे, पर जो है उन्होंने वाइड करार नहीं दिया। और सख्त है अंपायर, बिल्कुल लाइन पर से गुजरा है गेंद। एक्सपेक्टेशन दोनों बैट्समैन की यही थी। थोड़ा सा उन्होंने इंक्वायर भी किया अंपायर से कि वाइड नहीं, क्योंकि गेंद का पीछा नहीं किया था अनवर ने। अपनी जगह पे खड़े खड़े उन्होंने बल्ला घुमाया था। 2 गेंदें जीएफएस सिंध की इनिंग्स की बाकी। ये अच्छा ओवर रहा है, अब तक सिर्फ 6 ही रन बने हैं और इसके बाद 1 गेंद बाकी रह गई है। आइडिया बुरा नहीं है, फुलर बॉल काफी बाहर ऑफ स्टंप के, ताकि रीच से दूर रहें अनवर अली के बल्ले की। दोनों ओकेजन्स पर कामयाब रहे इसमें। अब सरफराज आखिरी गेंद का सामना करेंगे। 33 की पार्टनरशिप 20 गेंदों पे दोनों के बीच। सरफराज के पास एक ऑप्शन है कि वो गेंद को फाइन स्वीप करें, जो उनका मखसूस अंदाज है।
मिड ऑफ पर फील्डर को बाउंड्री पर भेज दिया गया है। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से भी खेलने की एहलियत रखते हैं। थर्ड मैन को पीछे हटाया गया। मिड ऑफ का अब आगे लाया जा रहा। ये बुरा आइडिया नहीं है, अगर फुलर बॉल कर रहे हैं ऑफ स्टंप के काफी बाहर तो ये एज लगेगा, तो थर्ड मैन पीछे सही है। और यॉक करने की कोशिश की, दाग दिया इसे सरफराज ने, और इस शानदार छक्के पर उन्होंने सिंध की इनिंग्स का इख्तिताम किया। 175 अच्छा स्कोर है। कप्तान सरफराज एक बार फिर 40 के पेटे में आए, नाकाबिल शिकस्त वापस जा रहे हैं। ये देखिए अच्छी चोट की सरफराज अहमद ने। जी हाँ, अगर आप यॉर्कर करना चाहते हैं तो आपको बड़ा परफेक्ट होना पड़ेगा अपनी लेंथ में, जरा सा चूके और आजकल जो आपके बैट्समैन है वो आपको छोड़ेंगे नहीं। नतीजा यही हुआ कि आखिरी बॉल पे छक्का हासिल किया, वो जो 175 की हम बात कर रहे थे वो मिल गए। जीएफएस सिंध को शानदार नॉक खेला सरफराज ने, उनके साथ अनवर अली ने, दोनों ने तकरीबन 165 176 के स्ट्राइक रेट पे खेला। 41-25 गेंदों पे सरफराज के, 22-13 गेंदों पर अनवर अली के। और जो आखिर में चाहिए था बड़ा स्कोर, जो चाहिए था फायर पावर, वो उनको मिल गया इन दोनों की शक्ल में। 20 ओवर पूरे खेले, 175 बनाए 4 विकेटों पर। अब हम आपको लिए चलते हैं मैदान पर, जहां हमारे मुंतजिर हैं बाजीद खान। अनवर, आज सिंध ने पहले बैटिंग की, जीएफएस सिंध ने, तो सेटिस्फाइड हैं कि इतना टारगेट बना लिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा डिसेंट टोटल बोर्ड पे लग गया 175। अब ये है कि बॉलरों पे जिम्मेदारी है और एज ए फील्डिंग यूनिट की हम अच्छा एक कैच और एक अच्छा रन आउट करें इंशाल्लाह। ये बताएं कि आपकी हिटिंग फॉर्म बहुत ज़बरदस्त जारी है, इसमें कितना मुश्किल होता है कि कंसिस्टेंटली आपकी फॉर्म रहे? सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है कि इतना कंसिस्टेंट हूँ। अपनी जब भी जिस सिचुएशन में भी बैटिंग आती है अपने आप को बैक करता हूँ, अपने स्किल को बैक कर रहा होता हूँ जब भी बैटिंग पे जाता हूँ, और इसकी पीछे मेहनत भी है, प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा करता हूँ। आज थोड़ा हब्स है मौसम, इतना अच्छा नहीं, बॉल स्विंग होगा शायद? हाँ, चांसेस तो हैं, जिस तरह अर्ली ऑन बॉल हुआ है नया बॉल, तो इंशाल्लाह हम चांस लेंगे कि अर्ली ऑन हम 1-2 विकेट्स लें। चलें, वेल प्लेड, और होपफुली बॉलिंग भी इतनी अच्छी होगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू बाजी। ये बॉलिंग बलोचिस्तान की खुरम ने 4 ओवर्स किए, 25 रन दिए, खिलाड़ी को आउट किया। आकिफ खासे महंगे रहे। शॉर्ट बॉलिंग की इब्तिदा में उन्होंने शर्जील को, और आखिर में भी वो सही एग्जीक्यूट नहीं कर सके। 50 रन उन्होंने दिए। उमैद आसिफ, हम्माद भट्ट दोनों ने 32 रन दिए अपने 8 ओवर्स में। और काशिफ भट्टी जो इकलौते स्पिनर्स थे, उन्होंने 31 रन देकर एक खिलाड़ी को आउट किया। तो यहाँ मैच जीतने के लिए बलोचिस्तान के सामने 176 का हदफ है 20 ओवर्स में। तो एक वक्फा आएगा, जिसके बाद देखिएगा बलोचिस्तान की बैटिंग।
Welcome back. We are halfway through match number 9. This is what happened in the first half. GFS Sindh. That's what they got in the end. 175 for 4, and I think it's a pretty good total. Masood 31, Shajil 34. Manzoor didn't get too many. Shakil 32 off 24, and Sarfraz was the star. Not out 41 again. He played very well in the last game also. 25 balls only. And Anwar Ali 22 off 13 is good work. So it's a good total. And I think they can be pretty pleased the way they've gone about things. Masood and Shajil were the two men that opened the batting. It was Sham Masood who worked one backwards on the offside, and Shajil had a lovely cover drive for extra cover. That was put away beautifully. That was the first 6. And that was the second one. Easing the ball on the onside as well. So at this stage, these two guys were dovetailing nicely. Runs were coming fairly well. That was a good, solid connection. That one went for 6. First ball, the introduction of Ahmed. That was the very next ball where he was dismissed. And that was a good catch taken out at cow corner. Lots of improvisation at this stage. Again, slicing across that one. Cries of catch it and taken again. Mansour, the bowling of Kashif, took that one. And Shah Masood was looking to continue as well. Before he was run out. A little bit of hesitation in the middle, which unfortunately for Masood caused his wicket. Sarfraz arrived, and guess what? He started sweeping, as he normally does. It was just a bit of a paddle around the corner. And more sweeps. Loves playing those shots. Very, very good sweeper. And this is a period where runs are coming quite quickly. I think they hit their mark at about the 10-over mark. They had a couple of dry overs in the middle. It was beautifully played. Nice bat plane from Shakil. He tried to do it once too often down that leg side, and that time pole was knocked out the ground. And then there's a good little stand just towards the end, which got them to a very good total. That was a solid blow. Really good, a good shot. Nice crack off the bat. And dragging on the onside as well. Ahmed was introduced. A couple of full tosses were costly from his bowling today. That was a nice way to sign things off. So the total's good. They'll be pleased with that. I'm sure they would have said, okay, let's get around about the 170 mark. 175 for 4 it is. Balochistan, look at the bowling figures. Karoom at the top, 1 for 25, going at just over 6 is very tidy. Ahmed 1 for 32, going at 8s. And Kashif 1 for 31. They certainly missed Yashir Shah. He is the star. He's been going at 5.5. And spin, I'm afraid, this time didn't hold things for the captain and also Balochistan. So in the end, they're going to have to bat very well now to make sure they get up today, because this total is going to be challenging, I'm sure. The track, I think, is probably just a little bit better. It's coming on reasonably well. It's had a couple of days, of course, just to breathe, I suppose, out in the middle. We'll have to see if it does slow down a little bit in the second half of this match number 9. Buzz Khan's alongside me. Baz, what are your thoughts? Sarfraz at the toss said that he wanted his team to bat first because there are plenty of matches, and also because of the fact that he wants to test out his team at every given scenario. So made sure that they bat first. They love chasing, which is an art they've developed and they're very comfortable with it. But once you bat first, you need to get to that 170 mark, and they've done that. There's a bit more bounce in this pitch. Yes, a fresh pitch after those couple of days of rest for the square. It'll be interesting how the GFS Sindh bowlers go about their business. How he uses the spinners. He's got Zaid Mahmood and Danish Aziz who can bowl a bit of spin. And now the defensive skills of the bowlers will be tested. And just to let you know what the ground staff would have done, they would have sprinkled the square a little bit, would have sprinkled the tracks that have been used so far. That would have happened 2 nights ago, so that would have been after the last game that was played here, after the 4 days in a row. And that just freshens things up a little bit. So that's what they would have done. They would have got a bit of a roll around after that once it dried, and just try and compress things a little bit. So that's why this is a little bit more life in it, not too much, but obviously it's a long stretch now going before the end of the leg here in Rawalpindi. That was Imamul Haq's work.
Bangalzai was really good, just 18 years of age, really good in the last game. Best of 58 not out is his return. That was that match. So he'll want to continue with that form as well. So they need to get off reasonably quickly. Bangalzai is someone who's in form, so he shouldn't have too many issues. I don't think the track's challenging at all. I think if anything the batsmen are going to enjoy it, so there's no dramas. I think this guy, Umar Ali, has got to step up for Sindh. I think he's a fine player, vice captain. I've seen him play a couple of events around the T20 events around the world, and I've liked his style over those events I've seen. I'd like to see a bit more aggression from him, actually. So that's what he needs to bring to the game. That's when I feel he's at his best. But like you, Baz. Talking about aggression, you want Imam ul Haq to bring some aggression as well at the top of the order. First 6 overs define a T20 game, and you want your openers to, yes, give you a solid foundation, but more importantly, get some runs on the board. So number 1 on the list, on the table, versus number 5. Sindh at 1, GFS Sindh 1, and Balochistan at number 5. Net run rate is what catapulted Sindh to the top of the table. We will see, obviously, the likes of Dohani, who's been really good. Hasnain has got a bit of tap. He needs to improve. He's been going at 10 and over so far in this edition. Hasnain's bowled with some nice pace. Right, here we go. A little bit leg side. That's bread and butter for a left-hander. So he's away. It is slightly muggy today, and you'd think that it might suit the swing bowlers. Anwar Ali gets the ball to swing back in to the right-hander. You just have to look out for that, if he can get excessive swing or not. Oh, that's beautifully bowled. Second delivery is a yarn quicker than the first. Across seam, just hit one of those cracks and zipped off the surface. So the cross seam, meaning that he doesn't want the ball to swing too much. No, but what he's hoping is that the fresh seam, on the brand new Kookaburra, if it hits that seam when it's a cross seam, it might bounce a little bit more. That's what he's hoping for. Slip in position. Oh, what a shot that is. That is cracked through the offside for 4. Yeah, short and wide and spanked through the offside. Short of a length, he just stood tall and thrashed it away. So Frost straight away saying that the line is wrong. You need to be tighter. Straight back past the bowler for 4 more. On the up. Again, superb. Bangalzai, a man on a mission. One smash through the offside. This time he just stood tall and hammered this back. Trusted the bounce in the pitch and made use of it. Got that for an 18-year-old. Far from a half volley. That's a great shot. Game on, Umar Ali. What have you got now? Back at the youngster. No run off the last ball. A couple of boundaries in that one, though. 9 off the over. 1 gone.
So Marmol Huck's had a little bit of a lean trot when it comes to T20 over the last little while. Double figures only, and once in the last 6 games. So he's going to try and turn that around. That'll help his team's cause. Be nice if they get a nice opening start. Balochistan, it's going to be interesting against Hasnain. He's got gas, we know that. He's got to improve what we've seen so far. Let's go through some of those batsmen again. And Gozai we've talked about. Abdullah Shafiq. I'm looking forward to seeing him play. I had looked some videos this morning about what he's done, and it's just crazy that he's been on the sidelines for 10 months without playing at a high level. He looks like a seriously talented player. Haris Sahel also there. So Abdullah Shafiq from that transfer window, and Sohail Akhtar also from that transfer window. So batting looks slightly stronger. Sohail Akhtar very experienced in T20 cricket as well. So good opportunity for Balochistan to get some runs on the board, chase his target down. As well. Oh, 1-1. If it hadn't been a fumble, it might have been a bit of a hurry up. Keep going here, boys. Keep going here, boys. Okay. Yeah, went straight away. It was a big opportunity, direct hit or any sort of clean pickup, and would have been trouble. Is the Iron Man. Completed 100 wickets today. Didn't look rusty at all. There's a change of pace from Hasnain. Just rolling the fingers across the ball on that occasion. Outside off stump, outside leg stump. Finally, a no ball by 3 feet, but it doesn't matter, hit the stumps. So we've seen him notch up 150 k's per hour, Hasnain. That's something he can do. Pleased to see that variation, that previous ball. That's a quick delivery. Oh, I wonder if that's a bit of a chance. Stohani did have a chance to run forward and catch that. One or two of his teammates think perhaps he should have. It was in there for a while off the glove. There's a bit of extra bounce in this pitch. We've seen that. You bend your back, you get extra bounce. That's why Imam couldn't get over top of that. Stohani, well, with the throw, maybe just backpedaling a little. I'm going yes, he did have time to go forward and maybe put a dive in to try and catch that. What do you think, Baz? I'm with you. Not often do I say that I agree with you, but this is one of those rare occasions, Hazy. Yeah, I think he could have been quicker at the blocks. It looked like he was going forward at one stage and then just bailed out. His name could have done with a bit of excitement at the start of his spell just to get him going. That one 147 k's per hour, 4 off the over though. Good work. 13 for none. As a look at GFS Sindh's bowling lineup. Ramon Reyes has been around for a long time, 107 wickets at 7.3. That's really good longevity of that career. A
On the expensive side, Ohani going at just a shade over 8. That's a thick edge, but it's wide and gone for 4. Roman Rice starts with room outside off stump. Bangladesh with that flashing blade, thick edge, and nobody's going to save that. So far what we've seen from Bangladesh is that any width, he's going to open his shoulders and thrash at it. Nice support from the bowler's end. Loud early call. He's a wily character, Reyes. Been around a long time. Beautifully bowled, and a bit of shape away from the left-hander. Mamul Haq can take a little bit of a breather at the moment because Bangalzai is going so well. PCB merchandise, create an account at shop.pcb.com.pk merchandise store now and get a chance to win a Pakistan cricket team T20 World Cup 2021 shirt. Ball. Wide. On height. One of the over. Roman Rice has a lot of toys. Slow bouncer, back of the hand, slow one. He will show you all of those in his spell. A little bit of movement away, but he went with it. And has he got enough on it? I think he might have. Yep. Outfield still quick. Bit of shape, but just slightly too wide. The good thing about Imam's shot was that he went with it. Didn't try and hit it over extra cover, try to hit it over cover point because of the swing. And you talk a lot about going with the spin, but you also have to go with the swing, which he did there. It's been a really decent start for Balochistan. 24 without loss. Bangladesh, the aggressor. I just feel that they're off to a good start. They're in with a chance. Their batting looks decent. With a couple of players inducted, so need a good power play. And so far, last ball of half the hour play coming up. Power play. Quick single and 3 done. It's 25 without loss. Good idea, this lone. Abdullah Shafiq batting number 3, but he can't wait to get out there. Of course, he wants his opening guys to keep going, but when he gets an opportunity, he'll be out there and really looking forward, I'm sure. Bangalzai has been playing nicely. Just a bit of a look initially, and then Mamul Haq had to take evasive action, actually. I think he might have been okay. Would have been very tight.
Right, 3 overs gone. Run rate at 8.5 almost already, 8.33. So they've got a nice little tone going, these two guys, with the Mamal Haq just providing strike for Bangalzai at this stage. Outside edge, that's unlucky. That's very unlucky. Well, pace and bounce and seam movement, 147 clicks. That's a superb delivery. The edge carried a long, long way. Even if there was a slip in place, I don't think he was in with a chance. Unlucky for Arslan, and unlucky for Sharjeel as well, the cameraman. They'll have a nice little bruise. So a bit of fire, first ball that over, and it's gone for 4. So it's disappointing for him. It's the life, I guess, of a fast bowler in T20 cricket. A little bit shorter and a little bit wide, but still quick. Plenty of pace, and the bounce that he's getting. Previous delivery, the edge, carrying down to third man. This one, again, extra bounce. Carries almost chest high, well, almost neck high to Sarfraz. Slip cordon has been strengthened. Reyes has moved to 1.5 slips. More time, that time from Bangalzai. Picking up the pace of these deliveries, so perhaps on the move a little bit quicker before that ball was delivered by Hasnain. Perhaps a little bit of a trigger movement. More in tune. Don't forget to scan that QR code to win exciting prizes. Come back after that first ball went for 4. Change up in pace. It's interesting in T20 cricket, yes. Back of length, he's getting extra bounce, he's getting the ball to shape a little. But then you look up and you've already conceded 7 off the over. So now you're looking at closing the over out rather than thinking, well, the length that I have to bowl is still short, which runs a risk of actually conceding a boundary. He'll be feeling more comfortable with a Mamal Haq on strike, I guess. Will assist closing it out if he gets him in the right areas. Short ball, nicely bowled. 1 over the over. 1 over the over. So he's bowled the 1 of the over. There's 2 men outside the circle, by the way, in the power play. There's a man at third man and also a man at deep backward square on the leg side. Oh, he's going to have to bowl that again. Looked for that variation, but didn't get the radar right. With that 1 off the over, Imam could almost set himself up with looking for that length delivery. So I reckon Imam will be comfortable just knocking it around. There probably is an opportunity to look for the boundary because he can predict the length. That's a dot ball. Shy at the bowler's end. Not a dot ball.
Go through for one. It's a expensive over as it turns out. 9 from it, 4 gone, 34 for none. Throw me. Drive with us. ये दोनों वक्त यहाँ पर मिल रहे हैं इस्लामाबाद और रावलपिंडी के इलाके में। ये संगम है दरअसल रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, जहाँ पर धानी इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं और उनका खैर मकदम किया। बड़ा खूबसूरत बैकफुट पंच इमामुल हक की जानिब से। धानी का पहला बॉल और इमामुल हक शानदार फॉर्म में। रन्स इनको जरूरत थी करने की और इस शॉट से पता चल रहा है कि किस कैलिबर की ये बैटर है। कोई मौका नहीं मिला था फील्डर को पॉइंट पे। दो चौके लगाए हैं इमामुल हक ने और 4 बार गेंद को बाउंड्री की राह पर डाल चुके हैं बंगलजई। गेंद हवा में लेकिन पहले गिर गई शान मसूद से। और धानी जो है यकीनी तौर पर शॉट ऑफ लेंथ बॉलिंग पर आजमाएंगे इमामुल हक को, क्योंकि ज़्यादातर विकेटें जो हैं उन्हें इसी गेंद पर मिलती हैं। पिछले मैच में 3 खिलाड़ियों को आउट किया था। और ये T20 में एक ऐसे बॉलर हैं कि कैच आउट कराते हैं आपको फाइन लेग, स्क्वायर लेग के इलाके में या विकेट कीपर के हाथों उसे भी स्क्वायर लेग की तरफ जाना पड़ता है गेंद कैच करने के लिए। अच्छी फील्डिंग, यहाँ पहुंच गए पर वक्त अपनी क्रीज में बंगलजई। धानी एक सेंसेशन है और फिलहाल अभी तक जितनी इन्होंने विकेट्स ली हैं, ये एक शानदार कैच था बैट्समैन की जानिब से। तेज बॉल कराते हैं खिंची हुई लेंथ पे और अच्छा बैटर को रीड करते हैं। मरमीन इस बार इनका शिकार बने थे। एंटरटेनर हैं, चैलेंज लेके बॉलिंग करने के शौकीन नहीं है जी। और कदरे मुख्तलिफ भी लग रहे हैं, खास तौर पर विकेट लेने के बाद जो अंदाज अपनाते हैं। PSL में ज़्यादा हंसते मुस्कुराते नजर आ रहे थे, इस बार गुस्से का भी इजहार करते दिखाई दिए। बॉडी लाइन डिलीवरी, वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से। ऑफ स्टंप के बाहर आज वाइड देने से गुरेज कर रहे थे अंपायर नासिर हुसैन सीरीज, लेकिन लेग स्टंप के बाहर गलती कोई गुंजाइश नहीं। और ये इनका सिग्नेचर्ड सेलिब्रेशन स्टाइल है। अक्सर हमें PSL में कार्लोस ब्रेथवेट के साथ सेलिब्रेशन करते देखा। एंजॉय करते हैं अपनी क्रिकेट, सबसे बड़ी बात ये एक शानदार बात होती है क्रिकेटर के लिए। जहां सिंध के एक छोटे से शहर से ये अपनी आंखों में बड़े बड़े ख्वाब लेकर आए पाकिस्तान क्रिकेट में, और एक ही सीजन में इनकी लाजवाब एंट्री रही। एक और अच्छा रन, अच्छी दौड़ लगाई इमाम ने। पिछली बार बंगलजई ने उनके बुलावे पर भागना शुरू कर दिया था। 8.79 की औसत से अभी रन बन रहे हैं। अच्छा स्टार्ट लिया बलोचिस्तान ने। विकेट भी कदरे बेहतर लग रही है। थोड़ा सा देखने को मिला था कि ग्रिप होना शुरू हुआ था बॉल, लेकिन अभी तक इमामुल हक और बंगलजई को खास मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। सरफराज अहमद देखा यह गया है कि ये अपने फास्ट बॉलर्स को ही आजमाते हैं। अपने चारों फास्ट बॉलर्स से एक एक ओवर ज़रूर कराते हैं पहले पावर प्ले में। धानी का ये पहला ओवर है। फेंड करने के बाद एक और रन हासिल किया इमामुल हक ने। अच्छी क्रिकेट देखने में आ रही है, लेकिन यहाँ विकेटों की ज़रूरत है आगे चलकर। गो के
कई बार बैटिंग आसान नहीं रहती जब गेंद की चमक जाती रहती, लेकिन क्योंकि ये झूठ-फूटे का वक्त है, लाइट्स ऑन हो रही हैं, तो ऐसे में बैट्समैन महसूस भी होते हैं। बिल्कुल, और अगर बैटिंग की बात की जाए तो बलूचिस्तान के पास अब अब्दुल्ला शफीक मौजूद हैं, सुहेल अख्तर भी आ चुके हैं इनकी 11 में। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा सिंध को। स्टार्ट अच्छा मिल गया बलूचिस्तान को और विकेटों की तलाश में इस वक्त सिंध। फौरन मना किया इमामुल हक ने क्योंकि रन मौजूद नहीं था। धानी के इस ओवर से 8 रन आए, 42 पर कोई खिलाड़ी आउट नहीं। अगर आप ये टूर्नामेंट HD में देखना चाहते हैं तो पाकिस्तान और दुनिया भर में आप PCB का YouTube चैनल जो है वो चला सकते हैं। इसके अलावा PCB फेसबुक पेज पर भी YouTube में आप देख सकते हैं नेशनल T20 कप की ये नशरियात। रावलपिंडी और इसके बाद लाहौर से भी मुकाबले बराह रास्त नशर किए जाएंगे। बलोचिस्तान की टीम यहाँ मुतलाशी है अपनी दूसरी कामयाबी की और सिंध की कोशिश है कि वो अपने नाकाबिल शिकस्त रहने का जो रिकॉर्ड है उसको कायम रखें। पाँच 4 की ऑफसाइड फील्ड के साथ आ रहे हैं रईस, और आज ये खासा रहा है। ये एक बेहतरी भी नजर आ रही है मंगल जई की बैटिंग में कि वो स्ट्राइक से हटने के लिए कोशिश हैं। पहले मैचेस में हमने देखा था कि बाउंड्रीज के लिए जा रहे थे, स्ट्राइक को रोटेट नहीं कर पा रहे थे। एतमाद में इजाफा हुआ है जिस तरह पिछले मैच में अपनी टीम को जितवा कर गए नॉट आउट। समझदार बैटिंग कर रहे हैं आज मंगल जई। विकेट अच्छा है गो, लेकिन फिर भी जो अच्छी बॉल पड़ी अच्छी लेंथ पे उसको सिंगल के लिए जा रहे हैं, जबरदस्ती शॉट बनाने नहीं जा रहे आज। और एक फर्क भी है यहाँ इमामुल हक और बंगल जई की बैटिंग में, एक तो एक लेफ्ट हैंडर है, दूसरा दाएं बाजू से खेलता है, और दूसरा ये कि बंगल जई के पास ज़्यादा वक्त है, बैकफुट पर ज़्यादा बेहतर तरीके से खेल सकते हैं। इमामुल हक की निस्बत अच्छी टेक्निक है, गेम को देर से खेलते हैं। ये पाकिस्तान अंडर 19 के भी वर्ल्ड कप के लिए कंटेंडर्स में होंगे। गेंद पूरी तरह बल्ले पर नहीं आई मंगल जई के। ये स्क्वायर लेग और स्क्वायर के सामने भी खेलते हैं कई बार ये पुल शॉट। अच्छा मनोवर करते हैं फील्ड को, जिस तरह की फील्ड सेट होती है लेट और अर्ली खेलते हैं अपनी शॉट्स, इतना कंट्रोल है। कुछ शायकीन ग्राउंड में भी मौजूद है आज। ये अच्छा मौसम होता है यहाँ इस रावलपिंडी इस्लामाबाद पोठोहार के इलाके में जब पतझड़ शुरू होती है सितंबर अक्टूबर में। खेला इसे सीधा हाथों में और दूसरी कोशिश में ये कैच मुकम्मल कर लिया शाहनवाज धानी, जिन्हें आप मुकाबले से बाहर नहीं रख सकते किसी भी सूरत में। इमामुल हक उनसे पीछा छुड़ा लिया रुमान रईस से। पहली कामयाबी सिंध को दिलवाई। एक बार फिर धानी ने कैच बाउंड में पकड़ा और बॉलिंग एंड पे मौजूद थे रुमान रईस। थोड़ा सा पेस से बीट हुए इमामुल हक, गैप में नहीं खेल पाए और एक अच्छा ब्रेक थ्रू सिंध की जानिब से। इमामुल हक एक बार फिर बड़ी इनिंग्स खेलने में नाकाम रहे। उन्होंने 19 रन बनाए 46 पर 1।
अब्दुल्ला शफीक के लिए वो लम्हा आ गया है जिसका इनको इंतज़ार था। बिल आखिर हमने देख लिया इनको वापस बैटिंग क्रीज पर, क्योंकि बहुत अरसा हुआ ये एड़ियाँ ठंडी करते रहे पाकिस्तान टीम के लिए भी डग आउट में और यहाँ पर भी। इसकी वजह इमामुल हक का ये शॉट था, सिर्फ एक फील्डर था उससे मात देनी थी, लेकिन ऐसा नहीं कर सके। थोड़ा सा लेट हो गए थे ये शॉट खेलने में पेस की वजह से। और प्ले मुकम्मल हुआ। रोमान रईस की बड़ी उम्दा बॉलिंग, इस ओवर में विकेट और सिर्फ 4 रन दिए, एक विकेट पर 46। जाने मिड विकेट चला जा बेटा पुरम यहाँ से बॉल लगा जा। पहले 6 ओवर्स मुकम्मल हो गए हैं। बलूचिस्तान ने अच्छा आगाज किया है, लेकिन अभी खासा लंबा सफर उनको तय करना है। 130 रन की जरूरत है। दानिश अजीज को आज जल्दी लाया गया लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिन करने के लिए। अच्छा शॉट, लेकिन ये बाउंड्री रुकनी चाहिए थी। विड थी ऑफ स्टंप के बाहर, बैकफुट पर जाकर खूबसूरती से प्लेस किया। निस्फ सेंचुरी मुकम्मल हुई बलूचिस्तान की बंगलजई की इस बाउंड्री के साथ। अच्छा प्लेस किया, क्लाई का इस्तेमाल किया, लेकिन सरफराज नाखुश हैं शर्जील की एफर्ट से और होना भी चाहिए, ये बॉल रुकना चाहिए था। पर दूसरे को बुलावा दिया था, लेकिन इसका मौका नहीं दिया सऊद शकील ने। इस साल सरफराज अहमद को उतनी मुश्किल पेश नहीं आ रही। पिछले बरस इन्हें 3 से 4 फील्डर्स को छुपाना पड़ता था। इस साल सिर्फ शर्जील ही हैवीवेट नजर आते हैं उनकी टीम में। लेकिन आज फील्डिंग की तारीफ कर रहे थे कप्तान सरफराज जब वो टॉस करने के लिए बाजीद खान के साथ आए थे, तो उम्मीद करेंगे कि वो म्यार बरकरार रहे जो पहले 2 मैचेस में कायम हुआ था। बहुत अच्छे दानिश, बहुत अच्छे दानिश, शाबाश। मॉडर्न डे क्रिकेट में अब तो फील्डिंग जो है वो असेंशियल होती है। पहले एक टाइम होता था कि एक्सेप्शनल समझी जाती थी, लेकिन आजकल नहीं। एक अच्छा कैच, एक अच्छा रन आउट जो है वो बाजी पलट देता है। ठीक है, अच्छा बॉल है। दानी बॉलर, दानी बॉलर, दानी। एक रन फील्डर पहुंचे बाउंड्री लाइन पर। शाहनवाज धानी गुड। खासी मजबूत बाहें हैं उनकी थ्रो करने के लिए, इसलिए चैलेंज नहीं किया बंगलजई ने। 2 नौजवान बैट्समैन एक साथ पहली बार खेल रहे हैं, अर्शलन शफीक और बंगलजई। अच्छा खेलते हैं स्पिन को अब्दुल्ला शफीक। एक रन उन्होंने भी हासिल किया। 7 रन का ये ओवर मुकम्मल हुआ 54 पर 1। रोकने वाला बॉल है, बॉल तो रोक ले, रोक सकता था। ये देखिए
ये संगम हो रहा है यहाँ। अगर आप दोनों लकीरों को देखते हैं तो ये 7 ओवर्स के बाद दोनों टीमें तकरीबन बराबर हैं। बलूचिस्तान की विकेट एक ही गिरी है। जाहिद महमूद, सरफराज अहमद, दोनों स्पिनर्स को कई बार देखा गया है एक साथ करते हैं इस्तेमाल। यहाँ पर दूसरा रन हासिल किया। इस बार अच्छी अंडरस्टैंडिंग देखने में आई। ये टपाल टी का लम्हा है। यहाँ तो ऐसे लम्हात आते हैं, जूं जूं ये खुनकी आती जाएगी यहाँ चाय का इस्तेमाल बढ़ता जाएगा रावलपिंडी और इस्लामाबाद में। आराम से फिर 2 की कॉल की, क्योंकि बहुत से रन जो हैं ये अब्दुल्ला शफीक ये दौड़कर बनाते हैं, ग्राउंड शॉट खेलते हैं। अच्छी क्रिकेट अभी तक दोनों की जानिब से। अब्दुल्ला शफीक और बंगल जई इस चीज का एहसास कर रहे हैं कि जाहिद महमूद एक अच्छे लेग स्पिनर है। रोमी आराम से, ठीक है जाहिद, एक टप्पे में आते रहो जरा। अभी मिसबाउल हक से बात हो रही थी दौरा वेस्ट इंडीज के बाद, जो पाकिस्तान टीम के हेड कोच थे वहाँ। तो उनका ये ख्याल है कि बाबर आजम के बाद टेक्निकली जो पाकिस्तान के स्क्वाड में सबसे अच्छे बैट्समैन थे वो अब्दुल्ला शफीक थे। बिल्कुल ये बॉर्डर लाइन केस थे दोनों ही टेस्ट मैचों में किंगस्टन में, लेकिन क्योंकि जिम्बाब्वे में आबिद अली ने डबल सेंचुरी बनाई थी और पाकिस्तान को एक अच्छे सिर्फ फील्डर की भी जरूरत थी, अपनी गेम को तब्दील करना वहाँ मुनासिब नहीं समझा गया। अगर ये टेस्ट मैच खेल चुके होते, इसमें कोई शक नहीं है, टेक्निकली काफी साउंड है अब्दुल्ला शफीक। बस ये है कि एक प्लेटफॉर्म उन्हें चाहिए और ज्यादा मौके चाहिए कि अपना टेम्परामेंट बिल्ड कर सके, क्योंकि बैटिंग मिडिल के अंदर खेल कर ही आती है। उस तजर्बे को हासिल करने के लिए आपको इनिंग्स खेलनी पड़ती है। इस बार हवा में खेला है, फील्डर दिलचस्पी ले रहे हैं और ले गए कैच। रुमान रईस ने कैच लिया और बंगल जई जो पिछले मैच के हीरो थे इस बार 29 से आगे नहीं बढ़ सके। जाहिद महमूद ने गेम को फ्लाइट किया, अगेंस्ट द टर्न खेलने के लिए गए। ये कैचिंग प्रैक्टिस हो गई आखिर में रुमान के लिए। जाहिद महमूद एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये आएंगे और ब्रेक थ्रू देंगे और ऐसा ही हुआ। बड़ी शॉट के लिए लग रहा था कि मारना चाह रहे हैं बंगल जई, लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए। बलूचिस्तान को दूसरा नुकसान। बंगल जई 29 बना के पवेलियन वापस और बलूचिस्तान है 59 पे 2। Need to be hunting in packs. Strophe. 5 कदम आगे, 5 कदम आगे, 5 कदम आगे। जानी। Experienced player, strike rate 109. But he made sure that he rotates strikes and gets it innings to go deep. Quite run rate. Almost touching 10. 9.8 and over. Spinner's doing a job. Bit in there for the spinners, and also there's slight bit of bounce to work with.
Nice evening, Bazid here in Indy. Spinners doing well. There is some purchase for them. Wide of the crease, Danish Aziz. Even Stevens the match right now, I feel. Trying to clear the fence, the connection not good enough. Good catch by Roman Reis. There again, good fielding. It's been an impressive fielding unit, has GFS Sindh. Not dropped many opportunities, been good in the field. Anwar Ali is exceptional. There's a gap between point and cover, and the captain is trying to tempt the batsman to play drive and maybe, you know, get an edge. Using the pace, but just a single. Good over from Danish Aziz. It's 62 for 2. Pretty even, the scores right now. Seen slightly in front. And the wicket straight away. Poor delivery down the leg side. He just swept it straight to short, fine leg. A gift. Yes, he's trying to loft it over that fielder's head. Wasn't possible. Straight to Danish Aziz. Good bowling and not such great batting, because there was an opportunity to get 4 runs. Had he connected well, Abdullah Shafiq. There's great demand for Abdullah Shafiq by many of the 62 for 3. The third wicket. Balochistan 62 for 3. There's the sun setting on Balochistan. Sohail Akhtar walks out. Required rate over 10.5. He's an experienced player. Normally bats up the order, but has batted in the middle order as well. Side memo down the leg side. Not the greatest delivery that he's bowled. The sweep shot going straight to the man. Well, things looking good for GFS Sindh. Shot was correct, but the execution not great. All he had to do is miss the fielder, but he hit it straight to the man. Well, everything all good. Good news for GFS Sindh. Also good news is that the Pakistan Cricket Board has doubled the seating capacity for the 6 matches to be played in Rawalpindi on 1st to 3rd October. The decision has been made following the approval from NCOC. Fans can continue to book their tickets through www.bookme.pk, BookMe's mobile application.
and terms and conditions will apply. Fully vaccinated, people can come to the ground and gain access. Lovely bowling, lovely bowling. Yeah, that's fantastic news. Great weather, it's improving in the evenings, it's really beautiful. So yeah, come and enjoy the matches. Some exciting prospects. Abdullah Shafiq was one of them, but he was some nervousness in the first match, I suppose. Pakad yourself. Lovely bowling, lovely bowling. Lovely bowling. This is a terrific spell. He's just gone for 7. Taken a couple of wickets. The spinners have come to the party and we were all expecting a bit of turn, but the bounce for the leg spinner has helped him. The googly, just a single. 3 off and a wicket. It's 65 for 3. शाबाश 2 नंबर डाउन यार भाई स्पिनर लगे हुए यार जाने 111 from the last 10. Things looking really tough for Balochistan at the moment. Danish Aziz. Slow left arm, spin and bounce. Yeah, a great deal depends on Sohail Akhtar, who's, you know, like you said, experienced, and he's been the Lahore Qalandars captain. So he's that's a good shot. So he's got a lot of experience and lots of runs to chase, more than 11 runs, 11.29 to be precise. Not an easy task. It'll take some doing, and the bowling has been good also. Even the part-time bowler like Danish Aziz has done well. In Izak, Haris Sohail goes over the top. Good striker off the ball. He's made sure that he's got close enough for that slog sweep. Yes, excellent one-day cricketer, Haris, but he's also showing some class. Slog swept this one really nicely. Good sweep shot for a 6. Loads of responsibility on him. This is a pair which can take the Balochistan team forward, take them towards the target, but it is pretty stiff. And in theory, you want the left-hander to take most of the strike. Left arm spin turning back into him, and also leg spin turning back into him, so he has more opportunity to play those big shots. Sohail Akhtar chances his arm and doesn't succeed. South Shakil with the catch. Balochistan lose another. That's pressure telling, runs needed, and Sohail Akhtar had to take a chance. He had no option, just played it straight to the fielder in the deep, and good catch by Saud Shakil, who made no mistakes. Sarfaraz really happy, smiling. Sohail Akhtar out for 3, it's 73 for 4. Bismillah Khan walks in.
And things looking extremely tough. Balochistan require over 11 and over. Danish Aziz with another one. It becomes back to us. Just stuck in the pitch. Maybe poke back and a cotton bowl. Haris Sohail has to walk back. Pressure, pressure, pressure. That is the name of the game when you're chasing. And that is why I prefer team batting first. And this is what happens in pressure. Part-timers get your wickets. Cotton bowled. Good catch. Haris Sohail out for 9. It's 73 for 5. इधर आओ जाओ स्लिप रखनी है स्लिप में कौन आएगा साउथ साउथ घुमाओ $73 for 5. Bismillah yet to face a ball. Ahmad Bhatt, non-striker. He's just walked in, so match been turned, and it's turned by the spinners. Before this delivery, the spinners have bowled 5 overs, 4 for 27. Ahmad Bhatt is in good striking form, but he'll need to pull something out of the bag, because right now it's all about GFS Sindh and about their spinners. Balochistan needs rear guard action from these two, and not just rear guard action, but some quick runs, some hitting. They need to go hammer and tongs pretty quickly, and that is the only way they can win. I mean, no option. It should be pretty straightforward, Bazid. I mean, nowhere to go, backs against the walls. Go ahead. Only one. Oh, ये check करो fielder Zahid. यार ये fielder को check करना है. Yes, absolutely, pretty straightforward, but to have the skill to manage against the spinners. Danish Aziz with the ball that bounced and stuck in the pitch a little and gets another wicket. Still have to contend with, after this, one more over from Zahid and one more over from Danish Aziz. Yeah, this is a sticky service. Surface not easy to play spin here, and chasing over around 12 runs in over. Shaukat Khanam serving the nation and you know, all of us in time of need. He's hit it in the air. Will this go all the way? No, it doesn't. Another wicket. Zahid Mahmood with his third. Roman Rice with the catch. And this is all GFS Sindh. Spinners ruling the roost. This is the 5th wicket for spin. Went leg side, no connection. Certain nosedive for the Balochistan team, chasing 12 runs and over almost, and wickets going down in a heap. Ahmad Bhatt comes and goes out for 1, 76 for 6. पीछे जाओ इधर आ जाओ तुम इधर पक्के बॉल करना पक्के बॉल वो देखा नहीं था वो देखना चाहिए था चौका हो जाता वो अनु इधर आओ
76 for 6. Since the spinners have come on GFS in, they've turned the screws. Kashif Buddy walks in. The problem is that there's a mountain to climb, to say the least. The reverse sweep, well, it missed the batsman, missed Sarfraz. Shan Masood does well with just a couple of runs. 12 gone, it's 78 for 6. चलो जल्दी 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 ये अपना छोटी स्विप खेलता है क्या? अच्छा ओके फिर रहने दो। दानिश आखिरी अच्छा चाहिए मुझे, शाबाश जाने। आखिरी अच्छा चाहिए, आखिरी अच्छा चाहिए। 3 रन पे 3 विकेट्स गवा चुके हैं बलोचिस्तान यहाँ, और 3 बड़े बड़े खिलाड़ी। हैट्रिक बॉल दानिश अजीज। सबसे पहले सोहेल अख्तर गए, उसके बाद आउट किया हारिस सोहेल को, और फिर तीसरी कामयाबी जो हासिल हुई सिंध को, वो भी बड़ी विकेट अमाद बट। शाबाश शाबाश। ये आराम से स्पिनर्स का काफी रोल अभी तक नजर आया हमें इस टूर्नामेंट में, और आज देखें माद बट बड़ी हिट लगाना चाह रहे थे लेकिन अगेंस्ट स्पिन गए, और एक और शिकार जाहिद महमूद का अच्छा कैच बाउंड्री लाइन पे। आराम से बाउंड्री रोको, बाउंड्री रोको। ओवरऑल अच्छा एफर्ट है। जीएफएस सिंध एक नया यूनिट नजर आ रहा है इस साल। इनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही है। तीनों डिपार्टमेंट्स इनके, कहते हैं ना कि सॉक्स पुल अप करने की बात की जाती है कि अपने उन एरियाज को जरा पॉलिश करें जहां पे आपकी वीकनेस नजर आ रही है। एक अच्छा आगाज लिया है तीसरी जीत की तरफ 3 मैचों में। सही है, सही है। आराम से आराम से आराम से आराम से। ठीक है ठीक है ठीक है। पहले मैच से काफी कंपोज नजर आए हैं। बैटिंग ऑर्डर भी जो भी जहां जिम्मेदारी मिल रही है वो बखूबी उसको निभा रहा है बैटर। बॉलिंग में भी कोई ऐसा वीक लिंक नहीं नजर आया। दानिश और जाहिद महमूद की वजह से स्पिन डिपार्टमेंट भी काफी स्ट्रांग है। अच्छी शॉट है, और प्रेशर में बैट्समैन को थोड़ी देर के लिए तकलीफ हुई होगी कि कहीं अंपायर सहमत ना हो जाए या कीपर की अपील से। काफी क्लोज लग रहा था लेकिन अंपायर नासिर हुसैन ने जो है वो उसके अगेंस्ट डिसीजन दिया। डॉट बॉल के साथ ओवर खत्म। 82, 6 खिलाड़ी आउट। बहुत अच्छा जा रहा है, फिनिश करना है अच्छा। हाँ सही है, आराम से रहे। बलूचिस्तान इस वक्त काफी मुश्किलात का सामना कर रहा है। हसनैन को बोलो जल्दी आ जाए। ओनली वन, ओनली वन। आराम से आराम से आराम से रोमी, आराम से। सही है। जाहिद अच्छे बॉल। एक बार फिर नजर डालते हैं। अंदर आया था एंगल से लेकिन काफी क्लोज मामला लग रहा है। नी हाइट पे लगा था और सरफराज और दानिश कॉन्फिडेंट थे लेकिन अंपायर का डिसीजन उनके अगेंस्ट गया। क्या हिकमत मिली होनी चाहिए अब बलोचिस्तान की। यहाँ से उनके पास अभी सफर काफी लंबा है। 4 खिलाड़ी रह गए हैं। बिस्मिल्लाह से जो होप्स हैं उनको अब डिमोट किया है ऑर्डर में क्योंकि नए खिलाड़ी आए लॉन्ग विंडो के तहत। तो यही चीज है जो
थोड़ा सा नए नंबर से अपने आप को उनको कंफर्ट लेवल पे आना होगा बिस्मिल्लाह खान को। कदमों का इस्तेमाल किया था और ऑन साइड पे खेलना चाह रहे थे। एक और कॉन्फिडेंट अपील थी लेकिन काम नहीं बन पाया। मुश्किल है। 14.31 का रिक्वायर्ड रन रेट है। स्पिनर्स ने दोनों एंड से ऑपरेट कर रहे हैं। काफी अच्छी लाइन लेंथ मेंटेन की हुई है। बिस्मिल्लाह को एंकर रोल प्ले करना पड़ेगा। काशिफ भट्टी को साथ लेके खेलना पड़ेगा। क्या बात है। जो बाहर निकल के शॉट मारने की कोशिश की थी काशिफ ने, बड़ी जोरदार अपील थी। कभी कभार कीपर यूज करते हैं अपनी अपील्स को फॉक्स करने के लिए बैट्समैन को भी, कि सिंगल के लिए ना जाए। बॉल खो गया था काशिफ से, उनको नहीं पता था गया कहाँ है पैर को लगने के बाद। इसमें चांसेस बन जाते हैं। ये सिंध का 95% जीतने का प्रेडिक्शन इनसाइड एज, और ये गेंद 4 रन के लिए चली जाएगी। तेज गेंद था ये स्पिनर का, और चौके के साथ ओवर का अख्ताम हो गया। 87, 6 खिलाड़ी आउट। जल्दी बुलाओ स्टैंड को। बहुत शानदार बॉलिंग। जाहिद महमूद ने अपने 4 ओवर्स में 3 विकेट्स हासिल किया, 18 रन दिए सिर्फ। स्पिनर्स का से जो आप कह रही थी नजर आ रहा है। 2 दानिश अजीज को वो जो यके बाद दीगरे 3 जो विकेट्स गिरी है ना, उन्होंने बिल्कुल बैकफुट पे कर दिया है बलोचिस्तान को। यहां से कोई बहुत ही स्पेशल एफर्ट दिखाना पड़ेगा बिस्मिल्लाह खान को। बलूचिस्तान सिर्फ अपने एक स्पिनर के साथ गया, काशिफ भट्टी, जो कि स्पेशलिस्ट स्पिनर तो मैं नहीं उनको कंसिडर करूंगी। यासिर शाह इंजर्ड थे। मोहम्मद मोहसिन एज ए रिप्लेसमेंट आए, लेकिन उनको आज प्लेइंग 11 में जगह नहीं दी गई। तो कहीं ना कहीं कमी जरूर महसूस हो रही है बलूचिस्तान को स्पिनर की। यही चीजें, यही हेल्प करेंगी चीजें। स्मार्ट क्रिकेट खेलनी पड़ेगी यहाँ। थर्ड मैन खासे वाइड थे और स्मार्टली खेला। बिल्कुल लेट खेला, थोड़ा सा रूम दिया था और अच्छा मैनूवर किया फील्ड को। फील्ड रीड कर रहे थे। बड़ी हिट्स लगानी है और कोई इनके पास चारा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा वाइज होकर इनको खेलना पड़ेगा। कुछ झटका एक हमारी बगी कैमरा को भी लगा। बड़ा अच्छा एक यूनिट सा बना हुआ है बॉलिंग का जीएफएस सिंध का। स्पिन और फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट दोनों ही अच्छा फॉलो किया है बाकी कैम ने गेंद को। ये आजकल टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई है मरीना कि आप गेंद को छुपा नहीं सकते कहीं, हर वक्त नजर में रहती है गेंद। ये इस बार कट ऑफ हो जाएगा। झटकों की बात करें तो ये रही जो स्पिनर्स ने अटैक किया है। सॉफ्ट डिसमिसल था, ये सीधा हाथों में खेल दिया। उसके बाद किसी भी शॉट, कोई ऑफर शॉट नहीं की थी, इजी कैच था उनके लिए। और ये वेरी सॉफ्ट डिसमिसल, ग्रिप हुआ था बॉल, दानिश ने सीधा खेल दिया। और ये अगेंस्ट द स्पिन अमाद बट, जिनसे काफी उम्मीदें थी, लेकिन आज इनके लिए दिन अच्छा खत्म नहीं हुआ। आप देखें उनके परफॉर्मेंस में जीएफएस सिंध की जिस तरह से 50s स्कोर की, उसके बरक से बिल्कुल यहाँ गेंदें बढ़ती जा रही हैं नंबर ऑफ 50s के लिए, स्कोर्स के लिए। टपाल्टी मोमेंट, स्टैटिस्टिशियन है ये, साथ साथ एनालिस्ट भी हैं जीएफएस सिंध की टीम के ये, और इसके साथ इनका दिमाग और तेज चलेगा। अच्छे मूड में है सिंध का कैंप, तो होना भी चाहिए तीसरी जीत की तरफ 3 मैचों में, क्योंकि हर जो प्लानिंग चल रही है वो सही जा रही है। आप देख सकते हैं, देखें जो केमिस्ट्री होती है, जो एक
स्माइल है, एक टीम की तरह खेल रहे हैं और रिजल्ट्स फिर उनके फेवर में आ रहे हैं। जिसको जो रोल दिया गया है उसने बाखूबी निभाया अभी तक। सिंध ने जितने भी मैचेस खेले, अगर एक से नहीं हुआ तो दूसरे ने कवर किया और यही टीम वर्क होता है और यही इनका राज रहा आज तक जीत का। टॉप ऑफ स्टंप, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इसको हिट करते हैं एज अ फास्ट बॉलर तो आप अपनी लाइन और लेंथ में बिल्कुल सही है। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। सिंध पूरी तरह से हावी बलूचिस्तान पे। जबरदस्त गेंद, कोई भी जवाब मौजूद नहीं था काशिफ भट्टी के पास और एक बार फिर आते ही पहली गेंद पे धानी ने अपना शिकार हासिल किया। और यही चीज इनकी सिंध की अच्छी है कि जब विकेटें गिर रही होती हैं तो फिर स्ट्राइक बॉलर को वापस लाएं और मजीद दबा दें बलूचिस्तान को। बलूचिस्तान एक और नुकसान, काशिफ भट्टी 5 बना के वापस, बलूचिस्तान 92 for 7। Next arm. Right arm over the wicket. 2 balls left. उमैद आसिफ नए बैटर। ये वो कामयाबी जो अभी दहानी ने हासिल की। टॉप ऑफ स्टंप, काशिफ भट्टी कहीं भी गेंद की लाइन के पीछे बल्ला नहीं था उनका, उसके अराउंड खेल गए बिल्कुल। बॉलर की इंटेंसिटी उसकी सेलिब्रेशंस में, हालांकि कोई ऐसा मैच फंसा हुआ नहीं है, लेकिन अगर आप हर विकेट को वैल्यू कर रहे हैं एज अ बॉलर तो वो अच्छी बात है। फास्ट बॉलर के अंदर होना चाहिए ये भी ऐसा लग रहा है कि हाथों में जाएगा। एक के बाद एक डीप में कैचेस दे रहे हैं। सॉफ्ट डिस्मिसल एक और 7वां खिलाड़ी जो है वो वापस जाएगा, 8वां इनफैक्ट, 93 के स्कोर पर। बिस्मिल्लाह खान फ्रंट फुट पे थे, बिल्कुल भी पोजीशन में नहीं थे कि इसको पुल कर पाते। जबरदस्ती की शॉट मारी और थोड़ा सा जगल किया लेकिन आसान कैच। और एक बार फिर धानी की सेलिब्रेशन। आठवीं विकेट डगआउट में वापस जाते हुए इस बार बड़ी विकेट, आखिरी उम्मीद बलूचिस्तान की। बिस्मिल्लाह खान 93 पे 8। चलो एक मिनट हाँ निकल जाओ। शाबाश आऊ, शाबाश। कमान चौड़े, चलो लैंड, शाबाश। उमैद आसिफ स्ट्राइक पर, नए बैट्समैन खुरम शहजाद। लवली बॉलिंग। सऊद शकील को अटैक में लाए हैं। स्पिन चल रहा है तो फिर क्यों ना सारे ऑप्शंस ट्राई किए जाएं। जायद महमूद, दानिश अजीज। इमाम उल हक ने पिछले मैच में ये बात जरूर वाजे की थी कि टॉप ऑर्डर को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और ये बिस्मिल्लाह खान चार्ज करना पड़ना था, उन्हें ही चांस लेना था, लेकिन कामयाब नहीं हुए। बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, क्या एक और अपॉर्चुनिटी हो सकती है? नहीं, ठीक है। बड़ा स्नूज में बड़ा रस्टी सा रिप्लाई रहा है बलूचिस्तान का। लग नहीं रहा किसी प्लान के तहत खेल रहे हैं। पहले एक शेल में चले गए जहां ज्यादा स्कोर नहीं मिल रहा था, जब रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता चला गया तो फिर सॉफ्ट डिसमिसल्स की एक लाइन लग गई।
कुछ बैटिंग ऑर्डर भी चेंज कर दिया बिस्मिल्लाह, अच्छे लग रहे थे 3-4 नंबर पे। तो आई थिंक ये कहना बार बार के गेंद फंस के आ रहा है, वो तो दोनों के लिए ही आ रहा है, लेकिन जो प्लान है वो शायद एग्जीक्यूट नहीं कर पाए आज इमाम और उनकी जो थिंक टैंक है, और मुश्किलात बढ़ती जा रही है क्योंकि 3 में से एक ही मैच जीता है अभी तक बलूचिस्तान। ज्यादा पीछे नहीं छोड़ सकते आप अपने आप को, पॉइंट्स टेबल में मुश्किल हो जाता है रिकवर करना। ठीक है, क्योंकि आज अब्दुल्ला शफीक और सुहेल अख्तर भी प्लेइंग 11 में शामिल थे, तो ये देखने में मिल रहा था कि बैटिंग जो है वो तगड़ी होगी, लेकिन कोई प्लान जैसे कि आपने कहा नजर नहीं आया बलूचिस्तान। दूसरे रन के लिए भी वापस, और इसके साथ स्कोर बढ़ते हुए हो गया 98। 8 खिलाड़ी आउट। Well, the win-loss plot is looking quite simple at the moment because beige is Sindh and gold is Balochistan. And you can see that one's going to win and one's lost the plot. North and south. Couldn't be clearer. That's high in the air. This is going to be out as well. Gee, they really have lost the plot here. And he's picked up another one. These celebrations keep coming, but I tell you what, I love his energy. I love the wickets. And if I was a selector, I might be sitting up straight a little bit. And Shahnawaz Dhani, his celebrations have changed, but the bowling is similar. He's taking wickets. He knows Umaid Asif can hit big, so he's tested him with a shorter one, and those angry celebrations. That's certainly a way to get off the bench and stop travelling and get in the middle, I think. Start playing. We'll have to wait and see what they think. Umaid goes for 4. Balochistan 98 for 9. Right arm over the wicket. Picked up a wicket the first ball of over number 17. It's got 3 for 12 now. Brilliant stuff. 3 for 12 off 2 overs and 1 ball, and he's fired up. And that's the last wicket. Very good length. There was bounce. He knew Umaid Asif loves to hit straight, so didn't give him that length. Shan Masood with a good catch. Dhani with a better celebration. Said it the other night, I hope he doesn't strain something or pop something out of that neck for those celebrations. He's been terrific. He's been really impressive. He did enjoy Akif Javed defending the last delivery. 7 wickets he's picked up. His economy rate's really good as well. There's a smile. He enjoyed that, hitting a splice of the bat. 7 wickets at an average of 10 apiece, 10.71 apiece. And his economy rate is going to be impressive as well. He's enjoying the wickets, but he's not enjoying if someone just defends him. Enjoying it. Economy rate at 7.52. So halfway through, over number 17, he's looking to finish things off. Now, has he finished it off? I think he has. Up goes that finger again. And more screams from Dhani. Brilliant. 4 for 12 his return. That is simply magnificent.
A clinical performance by Sindh, wrapped up by Shahnawaz Dhani and Sarfaraz Ahmed. It's 141 kilometers per hour and finishes the innings with another wicket. 5 for 22 they lost in the last 30 balls. Outstanding stuff, really impressive. That's the way good teams win. That's the way top bowlers do it as well. Apply some serious pressure at the beginning of the innings, then come back and bowl beautifully and wrap it up. Losing 8 for 36. Wow, that is devastation. Very well led by Sarfaraz Ahmed. He has used the bowlers well, selected the 11 well, and the batters were up for it. They broke the trend of batting first and winning the match for the afternoon game. A clinical performance from GFS Sindh. Yeah, outstanding. Really is a very good performance. The track was a little bit better. There were too many soft dismissals. Simple as that. Too many. The skipper will be worried now. They've gone down too many times and gone down badly a couple of times too. So Mamul Haq will be wanting to sit down and just get with his coach and go through a few things, I'm sure. Make a couple of calls to the selectors and just have a bit of a discussion, because that is not a pretty scorecard by any means. And this is the second time Sindh has got a team all out in this tournament, and that's great sign for Sindh, but not very good sign for Balochistan. So much for the lone players, a couple of them coming in and not making any impact at all in this game, really. If we look at the bowlers as well, I'm not going to go too far on the bowling stakes, because I just want to go down to Dhani. 2.4 overs, 11 dot balls, 4 for 12. That is brilliant. Mahmood 3 for 18 also of his 4 overs. But Dhani is by far the star of the show, and he was absolutely superb today, and that was a treat to watch. Aziz did nicely, 2 for 23. Really good work. Okay, look at the match summary. Sindh batting first, 175 for 4. It's the first time that they had batted first. They had 3 quiet overs too, going for 3 runs each over. Overs 10, 11 and 13. And have still got themselves a good total. Sarfaraz 41 off 25, played really nicely. Shadil also played well. Bowlers didn't make too much of an impact, and Balochistan all out for 98. Ongolzai 29 was the top scorer. Dhani starred, and Sindh won by 77 runs. And this is the points table. GFS Sindh at number 1 with 6 points, and look at that run rate, 1.65. The victory of 77 runs has really lifted that run rate for them. Home city Central Punjab at their back with 4 points. Khyber Pakhtunkhwa with 4. Balochistan in trouble after playing 4 games. They are just 2 points. They have just 2 points, but at the bottom of the table as ATF Southern Punjab. Sindh have definitely got a sniff. Look at them. What a performance. That net run rate has gone through the roof now. They've got a sniff at the top of that table. Okay, time for a break. When we come back, we'll have the presentation.
Okay, just an opportunity to have a look at the match summary again before we go down to the presentation. So Sindh batting first, 175 for 4. I thought they paced that really well. And of course, Balochistan didn't pick up wickets, so that's certainly helped their cause as well. But it was very good batting as they went along. Sarfaraz was really good again, another 40 off very few balls. That's what he did in the last game also. Shajol, 34 off 20. Shakil, 32 off 24. And Masood was there for a while. I'd be disappointed when he got dismissed, that's for sure. And wickets were shared with Karoon, Kasif and also Umaid. Balochistan, 98, that's all they got. Mangolzai was the top scorer with 29 off 23. Imamul Haq, 19. Bismillah, just a dozen. And Dahani was the star by some distance, 4 for 12 off not even 3 overs. That is devastating work from him. Mahmood, 3 for 18. Aziz, 2 for 23. And Reyes, who's a reliable performer. Just a couple of overs and 1 for 15. And Sindh won by 77 runs in a comprehensive performance. Okay, time to go downstairs now for the presentation with Marina. इनामी तकरीब में आपका खुशामदीद। आज नवा मैच खेला गया जिसमें GFS सिंध बामुकाबिल थे बलूचिस्तान के, जिन्होंने बाआसानी ये मैच 77 रन से जीता। सबसे पहले मैं खुशामदीद कहना चाहूँगी होमेज अप्लायंसेस की जानिब से मौजूद जनाब एहसन रज़ा को। और अब आगे बढ़ते हैं प्लेयर ऑफ द मैच की जानिब, जो कि हैं जायद महमूद। 3 विकेटें हासिल की सिर्फ 18 रन देकर। पहले वो ब्राइटो फैन ऑफ द मैच का बॉल साइन करेंगे, फिर अपनी ट्रॉफी वसूल करेंगे और साथ 25,000 का कैश अवार्ड। थोड़ी बात करेंगे जायद आपसे। जायद मुबारक को, आपकी परफॉर्मेंस आज काफ़ी अच्छी रही। कैसा विकेट लगा आपको और क्या आपकी हिकमत अमली थी? जी, सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है, अच्छा परफॉर्म हुआ। विकेट देखते हुए कोशिश यही थी कि रन्स ना दूं, क्योंकि हमें जो है सेव करने थे रन्स पहले। तो विकेट देखते हुए थोड़ी वेरिएशन से बॉलिंग की अपनी, उसमें विकेटें मिलती रहीं और रन्स भी बचते रहे। थोड़ा सा T20 में आपने अडेप्ट किया है, क्या ऐसी चीज़ अपनी बॉलिंग स्किल में लाए हैं जो आपको मदद दे रही है? जी देखें, मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा डॉट बॉलिंग करूँ और रन ना दूँ। उसमें वेरिएशन से बॉलिंग करता हूँ, कोशिश करता हूँ स्लो, तेज़, गुगली या फ्लिपर, ड्रिफ्टर जो भी है मेरी वैराइटीज़ वो यूज़ करता रहता हूँ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट मैचेस। थैंक यू। अब मैं बुलाना चाहूँगी इमामुल हक को, जो आज बलूचिस्तान की तरफ से कप्तान भी हैं और एक बार फिर शिकस्त का सामना हुआ। इमाम, उस तरह बैटिंग नहीं क्लिक की जिस तरह आप बात करते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लैक कर रहे हैं, क्या लगता है क्या रीज़न है इसकी? देखें, मेरे ख्याल से यही क्रिकेट सिखाती है। T20 क्रिकेट का यही मज़ा है कि कभी कभार जो है आप जितनी मर्ज़ी कोशिशें कर लें कि आप आउट हो जाते हो, मगर मेरे ख्याल से जो है फिर वही बात करूंगा कि टॉप 3 को जो है अगर एक 6 ओवर्स अगर वो खेलनी है तो एक को जो है क्योंकि 60-70 रन करना पड़ेगा, अगर आपने चाहे 140 भी चेस कर रहे हो, क्योंकि ये वो वाली विकेटें नहीं है कि जिस पे आप 200 जाएँ। ये 160 वाली विकेट्स हैं जहाँ पर अगर आपको मिडल में आपके फर्स्ट 3 का होना बहुत ज़रूरी है। तो जो कि मेरे ख्याल से हमने वो दोबारा लैग किया। हमने मेरे ख्याल से थोड़ी सी सिचुएशन के हिसाब से जो है शॉट्स नहीं मारे और बैक टू बैक विकेट्स गिरे, जिस वजह से बिल्कुल ही कोलैप्स हो गए। आपने विकेट्स की बात की, अभी तक जितना देखा स्पिनर्स को काफ़ी हेल्प हो रहा था, आज कहीं कमी महसूस हुई? सिर्फ एक स्पिनर के साथ गया आप? जी बिल्कुल। आपको पता है यासिर शाह हमारे अनफिट हो गए थे, तो हमने ज़रा थोड़ा सा जो है चेंज करने की कोशिश की थी कि हम अगर जो है क्योंकि कराची की बैटिंग थी तो हमने कहा कि जी हम फास्ट बॉलर से जाएंगे, और मेरे ख्याल से हमने 10 से 15 रन हमने थोड़े से ज़्यादा भी दी। अगर ये 160 तक होता तो हो सकता था कि जो हमारे दूसरे बैट्समैन थे उन पर प्रेशर कम होता शायद। चलें, ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट मैचेस। थैंक यू। अब मैं बुलाना चाहूँगी होमेज अप्लायंसेस प्लेयर ऑफ द मैच, पेप्सी प्लेयर ऑफ द मैच, जो कि सरफराज अहमद, जिन्होंने आला इनिंग्स खेली। 25 बॉलों पे 51 रन, 41 रन वो कलेक्ट करेंगे। अपना प्लेयर आपसे बात करेंगे। एक और जीत आपके नाम सरफराज, आज थोड़ा सा चेंज किया, पहले जो है वो बैटिंग करने गए, तो क्या उसकी हिकमत अमली थी? आई थिंक थोड़ा सा आज पिच को थोड़ा असेस किया और हमें ऐसा लग रहा था कि हमारी बॉलिंग को देखते हुए कि अगर हम रन्स ऑन द बोर्ड लगा देंगे तो अच्छा हो जाएगा, और कोशिश की कि अच्छे रन्स किए जिसकी वजह से हमें आज मैच में फ़ायदा हुआ और हमने विकेट्स लिए, मिडिल में स्ट्राइक किए जिसकी वजह से मैच जीते।
आपका काफ़ी कंपोज टीम लग रही है, बैटिंग डिपार्टमेंट में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, बॉलिंग में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, कोई ऐसा एरिया जिसमें आगे मैचेस में आप बेहतर करना चाहें? देखिए अभी तो बहुत अर्ली डेज हैं और ये कहना है कि अभी टीम आहिस्ता आहिस्ता अच्छी खेलती आ रही है। मैं समझता हूँ अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमें अभी कवर अप करना है और बैट्समैनों से लंबी इनिंग्स चाहिए, स्पेशली टॉप 3 के बैट्समैनों से। तो कोशिश कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं और फील्डिंग को मजीद बेहतर से बेहतर करने की ज़रूरत है। और आपकी अपनी परफॉर्मेंस काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया होगा, क्या आज का माइंडसेट था आपका? बस कुछ नहीं था, ये कोशिश यही थी कि जैसी विकेट ही पिच देखते हुए क्या था कि अगर पूरे ओवर खेलेंगे तो 170 प्लस स्कोर हो सकते हैं। और आखिर में जिस तरीके से अनवर ने और बीच में मिडिल में सऊद शकील ने जो इनिंग खेली वो बड़ी आउटस्टैंडिंग थी। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट मैच। थैंक यू। आज की तकरीब से इतना ही। आज सिंध ने एक और जीत अपने नाम की। अगली दफ़ा मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़। Marina, thanks very much. Now, just a reminder, we've got our second game coming up. It's Northern versus ATF, Southern Punjab. And that's going to be coming up at 7:15 local time. So that's just over 45 minutes time. So make sure you join us then. And we're going to have plenty of action because that's also an important game. A couple of teams that need some points. We'll see you then. और जुआड़े हाथों ले सके ये कर दिखाया और मुंह की खाना पड़ी। कंट्रोल में नहीं है ये शॉट और ये बड़ी विकेट। There is protection, but it's not going to matter. और बॉल कर दिया, चालाकी से शॉट खेलने की कोशिश की सऊद शकील ने। And the wicket straight away.